कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें। एक दूसरे से कम से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें। आंख, नाक और मुंह को न छुएं। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपे रखें। साबुन से बार बार हाथ धोएं और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तंबाकू चबाकर थूकने से बाज रहें। जिस भी सतह को छूना पड़े उसकी सफाई यकीनी बनाएं। Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss collision. This topic is we have chosen from class 11th. So dear students, I hope that the students from class 11th will take a keen interest in it, as well as those students who are preparing for the entrances, they can also watch this program. It may be helpful for them also, okay? So let us go directly to the topic. What is topic? Collision. And do you know, dear students, what is collision? It is a short duration, okay? It's a short duration, a short duration, a short duration mutual interaction, okay? Mutual interaction, mutual interaction, mutual interaction between particles or bodies, okay? Particles oblique bodies, so that such that their momentum and energy change, okay? All right. So my dear students, whenever there is a mutual interaction between the two particles or bodies, such that their momentum or energy change, momentum and energy change, so we can set that event as a collision between the bodies, okay? रोजमर्रा जिंदगी में everyday life में collisions होते ही हैं, लेकिन अब इस collision के types क्या हैं? जैसे for example जो automobiles हैं वो टकराते हैं, वो collision है। जैसे हम बॉल ग्राउंड के ऊपर फेंकते हैं, वो वापस आ जाती हैं, तो वो ग्राउंड के बीच और बॉल के बीच में collision होता है, ओके? जैसे हम घर में कैरम खेलते हैं, कैरम बोर्ड, तो वहां पर जो हम स्ट्राइकर एक दूसरे के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उसको कोलिजन बोलते हैं। I mean there are so many examples in our day-to-day life that belong to this actually this domain, okay? So collision वहां पर होता है। आज हम वही collision पढ़ने जा रहे हैं। Dear students, keen interest रख लीजिए, because ये बहुत ही important topic है क्लास 11th के लिए और आगे एंट्रेंस के लिए भी। तो I hope that आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे आज। कीप रेडी योर कॉपी एंड पेन, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगी उनको नोट डाउन कीजिए, ओके? बिकॉज जैसे आप ये लेक्चर देखोगे उसके बाद अगर आप इसको भूल भी सकते हो कुछ चीजें, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपनी कॉपी और पेन गेट देम रेडी सो दैट यू विल नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके? So first of all, this collision it has major, okay, two types, okay? One is called the elastic collision, one is called the elastic collision, one is called the elastic. See, it's a collision, so elastic collision, and another is called the inelastic collision, inelastic collision, inelastic collision. So this is the second type of collision. So I am catering this time the collision. So what I have told you is that the collision is two types. One is called the elastic collision and another is called the inelastic collision, okay? So fine. So now let's move to the move ahead. So it has further, it can be of one dimensional or it can be of two dimensional. So 1D I mean one dimensional, and it can be even 2D means two dimensional. So 1D elastic collision, okay, 1D elastic collision and 1D elastic collision. It can be also 2D elastic collision. It can be also 2D elastic collision, 2D elastic collision, okay? Got it, my dear students, got it? So now,
so far, what we have got so far, collision has two types. One is called the elastic collision, one is called the inelastic collision, and then we do have the one-dimensional and two-dimensional elastic collision as well. Okay, so now I will rub it and I will tell you more things. So now elastic and inelastic collision, how we can differentiate? So here is a elastic collision, here is a elastic collision, and here is inelastic collision. If suppose somebody will ask you to differentiate the two, how you can differentiate? You know, here in elastic collision, momentum remains throughout the collision, it remains constant. Okay, momentum throughout the collision remains constant. Point number one, very important point. For example, if I'll take time with momentum throughout whole collision, so P for momentum, T is here time, so momentum throughout the collision remains the same, constant. Just note down it, momentum throughout the collision remains constant. Point number two, which is very important, point number two, so kinetic energy is also constant, but ये जो है ना constant, momentum is a vector quantity but kinetic energy is a scalar quantity. So आप जब इसका ग्राफ यहाँ पर लोगे kinetic energy का, जो इनिशियल में होगा फिर फाइनल में कितने चेंजेस आएंगे इसके साथ इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो फाइनल होगा वो सेम होगा. So this will be initial kinetic energy, this will be final kinetic energy, F for final, I for initial. So look here, so kinetic energy is also here constant, but the difference here lies that this momentum is constant throughout the collision, okay, but this kinetic energy, the initially and finally it is same, but during the collision it may change. Remember it, during the collision it may change, but initial and final remains the constant. Here it is this a difference. But what is inelastic? So if anybody will tell you what is elastic collision, it's a type of collision in which the momentum throughout the collision remains same, and the kinetic energy in initial and before collision and the after collision remains the same. Okay, during the collision it might change, but initial and final में ये same होगी. Okay, but here in inelastic collision, point number one, momentum is constant, ये constant रहता है बेटा, ये constant है. इसका मतलब फिर भी अगर मैं मोमेंटम P से दिखाऊं ये कांस्टेंट रहता है थ्रू द कोलिजन, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी हम ऐसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट थ्रू द कोलिजन, इट इज नॉट कांस्टेंट, सो इट इज नॉट कंजर्व्ड. आप बोल सकते हैं इट्स नॉट कंजर्व्ड. सो अगर ये कंजर्व्ड नहीं है तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल. ये रिमेंबर it, note down it. Okay, remember it. Here what is the difference? The difference, elastic and inelastic collision, momentum is conserved in both the collisions, both the types of the collisions, whether it's elastic as well as or inelastic, but the difference lies in kinetic energy. The kinetic energy in case of the elastic collision is constant, okay, is conserved. I mean initial stage, final में वो बराबर ही होगी, बीच में क्या होगा हमें उसके साथ मतलब नहीं है, but initially and finally ये constant होगा, it's a scalar quantity. And but in case of the inelastic collision, kinetic energy is not conserved. This is the main difference between the two. So if it is not conserved, then what is the case? The case is kinetic energy initially is greater than what is kinetic energy after the collision. So before collision जो kinetic energy होगी बॉडी की वो ज्यादा होगी compared to जो after collision होगी. So अगर मैं ऐसे इसका प्लॉट दिखाऊंगा, इसका प्लॉट, okay, अगर मैं इसका प्लॉट दिखाऊंगा kinetic energy का, so kinetic energy versus time, तो ये कुछ इस तरह का दिखाएगा. देखो initially ज्यादा है और finally ये कम होता जा रहा है. Okay, got it? So note down it. Okay, note down important points, beta. Note down important points. So now, my dear students, let us move to another portion of this topic. Okay, I will try to make you understand this topic so that you can do it with very ease. Okay, now the point is let us move to the elastic collision one dimensional, then we will go to the elastic collision two dimensional. So first of all we will go to the elastic collision one dimensional. Okay, elastic collision, okay, elastic collision. But dear students, this 1D I am catering this time 1D, okay, only 1D. So elastic collision one dimensional.
So let us revise some formulas for it, so that the numericals will be asked in the examination or in entrance examination, so we can do them easily. Okay, let us derive some formulas which will be very much of use. Okay, so हम देखेंगे बेटा यहाँ पर suppose ये एक बॉडी है जिसका mass m1 है, okay, जिसकी velocity u1 है इनिशियली, और जो यहाँ पर बॉडी है m2 जिसकी velocity u2 है, और जब कोलाइड किए ये, जब कोलिजन हुआ सो मैं कोलिजन के बाद मानता हूं ये जो बॉडी m1 है इसकी वेलोसिटी v1 है और बॉडी नंबर 2 की वेलोसिटी v2 है, ये मसला है, ऐसा मानते हैं. सो हाउ कैन वी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी A और द बॉडी 2, ओके, बॉडी 1 और बॉडी 2, मैंने यहां पर 1 2 लिखा है, A B नहीं लिखा है. सो हाउ कैन वी फाइंड द, सो दिस u1 एंड u2 इज द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज 1 एंड 2 बिफोर कोलिजन, बट द v1 एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज 1 एंड 2 आफ्टर कोलिजन. सो हाउ वी कैन फाइंड इट? हम जानते हैं ना एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड throughout the collision. In fact, kinetic energy is also conserved. Okay, जो before collision और after collision वो सेम होगी ना, बीच में क्या होगा हमें उसके साथ मतलब नहीं है. ओके, सो चलिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से डिराइव करेंगे इक्वेशन. किसे करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, हम जानते हैं इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताएं इक्वेशन क्या लगेगी. सो यहां पर जो मोमेंटम होगा टोटल वो होगा m1 u1. ओके, m1 u1 इसका मोमेंटम बॉडी नंबर 1 का. बॉडी नंबर 2 का क्या है? m2 u2. बस इतना ही मोमेंटम है ना, और कितना है? यही तो है. और लकीली वो एक ही एक्सिस पे है, हम सीधे ऐसे ऐड करते हैं इन वेक्टर क्वांटिटीज को, मोमेंटम को, जैसे स्केल लग रहा है, बिकॉज ये एक ही एक्सिस पे है. ओके, m1 u1 प्लस m2 u2. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू अब यहां मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या है? सो मैं आपको बता रहा हूं, जो मोमेंटम कंजर्वेशन आपको क्या बता रहा है, फिर से आपको बताऊं, एक बार दीजिए, एक मिनट दीजिए मेरे को. सो मोमेंटम ऐसे करोगे, मोमेंटम, ठीक है ना, इनिशियली जो होगा वही मोमेंटम फाइनली होगा. ओके, मानते हैं ना, यही कंजर्वेशन है. तो ये मोमेंटम जो है बॉडी नंबर 1 का, ये मोमेंटम बॉडी नंबर 2 का, इनिशियली. सो इनिशियली 1 का, इनिशियली 2 का. सो जो यहां पर फाइनली 1 का होगा प्लस फाइनली 2 का होगा. ये मतलब है मेरा मोमेंटम कंजर्वेशन का. मोमेंटम इज कंजर्व्ड का मतलब जो इनिशियली मोमेंटम होगा वही फाइनली होगा. ओके, वही कंजर्व्ड है. सो मैंने क्या लिखा? P इनिशियल इज कॉल्ड P फाइनल. सो ये बॉडी नंबर 1 का है. सो हियर आई विल से m1 u1, ओके, प्लस m2 u2 जो मैंने पहले लिखा था, इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा? m1 v1 बॉडी नंबर 1 का आफ्टर कोलिजन. सो m1 उसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है, प्लस m2 और इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 है. ये देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ओके, सो हम एक काम करेंगे, हम m1 वाले अलग लाएंगे, m2 वाले अलग लाएंगे. सो यहां पर देखिए क्या इक्वेशन बनेगी? m1 u1 माइनस m1 v1. ओके, माइनस m1 v1. देखिए जब इसको यहां हम ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2. ओके, गॉट इट. जब u2 को ये m2 u2 को उस साइड लेंगे तो वो वहां नेगेटिव बन जाएगा. तो m1 को हम कॉमन लेंगे जिगर, m1 यहां पर कॉमन लीजिए. सो दिस इज u1 माइनस v1, दिस इज इक्वल टू m2 को यहां कॉमन लीजिए, दिस इज इक्वल टू v2 माइनस u2. गॉट इट डियर्स? इसका आप इक्वेशन, ये एक इक्वेशन आ गई किससे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से. ठीक है, एक्चुअली निकालना क्या है? हमें निकालना है कि आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज होगी वो क्या है. नहीं, v1 और v2 निकालना है, वो है टारगेट. जो मैं थ्योरी में ये डेवलप कर रहा हूं, मेरा एक ही टारगेट है कि मेरे को v1 निकालना है, और मेरे को v2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ u1 u2, और यहां पर भी इन टर्म्स ऑफ u1 u2 मुझे निकालना है. ओके, u1 u2, ये भी u1 u2 में निकालना, वो भी. ओके, फॉर दैट पर्पस आई हैव फर्स्ट अप्लाइड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्वेशन डेवलप की. ओके, वो इक्वेशन आप याद रखिएगा. ओके, सो जब याद रहा तो अब हम दूसरी इक्वेशन डेवलप करने जाएं. क्या है? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड. कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखिए क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी जो बिफोर कोलिजन होगा इनिशियली, वो ही होगा आफ्टर कोलिजन इन फाइनली. ओके, लाइक दिस. सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन फर्स्ट नंबर बॉडी की, फिर सेकंड नंबर बॉडी की जमा हो जाएगी, इसके क्वांटिटीज है. इस तरीके से यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की, फिर सेकंड बॉडी की, वो भी जमा हो जाएगी, जैसे मैंने मोमेंटम में किया था. सो ये क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर. ओके, बॉडी नंबर 1 का, प्लस बॉडी नंबर 2 का, हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर. ओके, गॉट इट. काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी नंबर 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी नंबर 2. ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए इसको ऐड करना है, इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं है स्केलर क्वांटिटीज को जमा करने में. ओके, गॉट इट. तो देखिए फिर फाइनल में क्या करेंगे? हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस बॉडी नंबर 2 का हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर. ओके, ये रहा. देखिए
अब हम हाफ 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 तमाम में कैंसिल करेंगे बिकॉज ये कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा. सो यू आर लेफ्ट विद m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर. ओके, गॉट इट. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, m1 एक साइड में लाएंगे, फिर m2 दूसरे साइड में लाएंगे. ओके, या इसको नोट डाउन कीजिए प्लीज, इसको नोट डाउन कीजिए. क्या आपने नोट डाउन? सो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद इसको और फर्दर करेंगे. ओके, सो देखिए फाइन. सो व्हाट विल डू, हम m1 को एक साइड में लाएंगे. सो यहां पर m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, वहां पर क्या है, फिर वहां पर है m2 v2 स्क्वायर. जब ये m2 वाला वहां पर लेंगे माइनस होगा m2 u2 स्क्वायर. ओके, सो m1 को कॉमन लेंगे, दिस इज u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 को कॉमन लेंगे, यहां पर बनेगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. गॉट इट माय डियर्स, गॉट इट, गॉट इट. इट्स वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल. ओके, सो नाउ अब यहां देखिए ये इक्वेशन आ गई हमें कहां से, कंजर्वेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ द इलास्टिक कोलिजन इन 1D. ओके, तो यहां पर क्या है, यहां पर हमारी ये इक्वेशन नंबर 2 है. टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा एक्चुअली v1 v2 निकालना. ओके, चलिए फॉर दैट पर्पस व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो मैं जब डिवाइड करूंगा, सो ये देखिए, ये आप याद रखिएगा, जब आप डिवाइड करेंगे, फाइन. तो यहां पर मैं रब करता हूं, इलास्टिक कोलिजन 1D इज द टॉपिक. सो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, डिवाइड, शाबाश, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. ओके, डिवाइड कीजिए, डिवाइड किससे क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1. ओके, 2 बाय 1 क्या आएगा आपको, जब आपको आएगा यहां पर m1 ओके u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2, यहां पर क्या है v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. ये तो सेकंड है, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट से. फर्स्ट जो है मोमेंटम से हमने लाया u1 माइनस v1, ये यहां पर डिवाइड होगा m2 जो राइट हैंड साइड उसका है v2 माइनस u2. ओके डियर्स, गॉट इट. नाउ देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या होने को है, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके, सो देखिए m1 कैंसिल, m2 कैंसिल. सो यहां पर क्या रहेगा, यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो a माइनस b ओके इंटू a प्लस b. सो ये यहां पर आएगा डिवाइड बाई u1 माइनस v1. ओके, गॉट इट, u1 माइनस v1. सो यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी a माइनस b, सो a माइनस b प्लस a प्लस b, v2 प्लस u2. ये देखिए फॉर्मूला यूज हो गया यहां पर, होल डिवाइड बाई v2 माइनस u2. ये देखिए a कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. सो यू आर लेफ्ट विद द वेरी सिंपल इक्वेशन u1 प्लस v1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, v2 प्लस u2. ये देखिए, ये एक थर्ड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन. ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ओके, अच्छी अच्छी चीजें यहां पर आ गई. तो आप देखिए, आप फर्दर में क्या करने जा रहा हूं, देखिए अंडरस्टैंड इट. मुझे v1 v2 निकालना है, टारगेट क्या है, टारगेट है v1 और v2 निकालना. टारगेट क्या है डियर स्टूडेंट्स, v1 और v2 निकालना. ओके, सो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे इसको ना यहां पर एक, हालांकि ये इक्वेशन नंबर 3 है, लेकिन आउट ऑफ दिस 3 इक्वेशन मैं कुछ आपको बता रहा हूं पहले, ठीक है, फिर हम फर्दर जाएंगे, मूव करेंगे. लेकिन एक ऐसे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बॉक्स में आपको बताऊंगा, वो आप देख लीजिए, जो हमें काम आ जाएगा. ओके, सो यहां पर मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे करूंगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1. देखिए u1, ये u2 इधर लाइए, सो माइनस u2, सो यहां पर v2 है, उधर लीजिए, सो v2 माइनस v1. डू यू नो u1 माइनस u2, जब हमारे पास दो बॉडीज थी ना हमारे पास, ऐसे दो बॉडीज, ठीक है ना, इसका वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी. ओके, सो ये बॉडी नंबर मास m1 है, बॉडी नंबर 2 मास m2 है. ठीक, सो हमने फिर क्या किया, देखो हमने फिर क्या किया था, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, जब इनका कोलिजन हुआ था, कोलिजन के बाद ये जो m1 है और ये जो m2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है. ये देखिए आप अंडरस्टैंड कीजिए, 1D कोलिजन है, इलास्टिक 1D कोलिजन. सो यहां पर क्या है, देखिए यहां पर u1 माइनस u2, सो बॉडी नंबर 1, तो ये तो है ना रिलेटिव वेलोसिटी, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी, एक दूसरे के मुकाबले में कितनी वेलोसिटी है, u1 माइनस u2, बट u1 माइनस u2, मैंने u1 को ग्रेटर देन u2 लिया था सपोज फॉर एग्जांपल, तो ये बन गया फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बिकॉज u1 ग्रेटर देन u2. अगर ये इक्वल होंगे कोलिजन कभी नहीं करेंगे. इफ u1 इक्वल टू u2 कोलिजन करेंगे, नहीं करेंगे. इफ u1 इज ग्रेटर देन u2 तभी ये कोलाइड करेंगे. सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, u1 तेज भागेगा u2 के मुकाबले में और इसके साथ कोलाइड करेगा. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. पता चला ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ठीक है ना. फिर जब कोलिजन हुआ, सो यू नो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2, और फिर जब कोलिजन हुआ फिर है v2 माइनस v1.
सो V2 माइनस जब कोलाइड किए तो उसके बाद दूर हो गए, तो दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, V2 माइनस V1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, याद रखिए, यहां पर U1 माइनस U2 है, यहां पर V2 माइनस V1 है, V2 माइनस V1, यहां पर U1 माइनस U2 इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, V2 माइनस V1 इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन। ओके ठीक है। सो देखिए कौन सा कोलिजन था, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। सो हमें पता चला वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 1, इसको यहां लिया। सो ये देखो ना, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज इक्वल टू 1, इट इज डिनोटेड बाय E, सो E इज इक्वल टू 1। क्या पता चला आपको, ये इक्वेशन नंबर 4 कहीं पर आप रख लीजिए तो पता चल जाएगा आपको, कहीं पर ये एक्चुअली 3 से ही निकली है तो 3A में नाम दूंगा, ये कोई फोर्थ इक्वेशन नहीं है। सो पता चला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इज 1, रिमेंबर इट। ये आपको एक ऑब्जेक्टिव की तरफ पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या पूछेंगे कि बताइए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन क्या है। बीच में एक पॉइंट हमने निकाला, हालांकि ये मुझे डिराइव नहीं करना था, मुझे V1 V2 निकालना था, बट बीच में आपके लिए डिराइव किया कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू 1, इज यूनिटी। ओके, याद रख लेना आप, डिनोटेड बाय स्मॉल e, ओके, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल e। सो पता चला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। व्हाट इज ओके, आई एम सॉरी, आप एक काम कर लेना, आप इसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेना, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो वही बात होगी ना। देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 1 तो वैसे भी आएगा, तो एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ओके, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, so that velocity of separation divided by velocity of approach is called the coefficient of restitution. So coefficient of restitution is equal to 1, पता चला। what is velocity of separation, V2 minus V1, what is velocity of approach, U1 minus U2, so पता चला V2 minus V1 divided by U1 minus U2 is equal to 1 for elastic collision। आज के बाद हम हमेशा याद रखेंगे that coefficient of restitution is equal to 1, मतलब इसका क्या मतलब है, velocity of separation divided by velocity of approach is equal to 1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है V2 minus V1 divided by U1 minus U2 is equal to 1। हो सकता है कहीं न्यूमेरिकल में कहीं काम आ जाए, तब आपने कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, ओके। हालांकि आप बहुत से जो मैंने पहले किया तो वहां से भी 1 आ जाएगा, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें लेना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ओके। अच्छा चलिए, हम कुछ करने जा रहे हैं V1 V2 निकालने के लिए। अभी हमें पता चला, क्या पता चला, पता चला इक्वेशन नंबर 3 में U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। चलिए अब हम एक काम करेंगे, इक्वेशन क्या आई थी हमें कैनेटिक एनर्जी से, वो याद है आपको, हमें आई थी क्या इक्वेशन, कैनेटिक एनर्जी की या मोमेंटम की इक्वेशन हमें आई थी, वो आपको पता है क्या मोमेंटम इक्वेशन आई थी। मोमेंटम इनिशियल में जो है वही मोमेंटम फाइनल में है, वो आया था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ओके। वो इक्वेशन अगर आपको आपकी कॉपी पे लिखी होगी तो ये इक्वेशन देखिए, फिर हमने m1 एक साइड में लिया था, ये आया था u1 माइनस v1, फिर हमने m2 को कॉमन निकाला था, ये आया था v2 माइनस u2, ओके। अब हम एक काम करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन ये जो इक्वेशन, इसका इक्वेशन नंबर 1 लिखा था हमने, याद है आपको, आपने इक्वेशन नंबर 1, तो आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, आपके पास ऑलरेडी है। तो वहां पर आपकी इक्वेशन नंबर जो 3a है, इक्वेशन नंबर 3a से हमें क्या मिला, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो हम एक काम करेंगे, हम v2 को यहां से एलिमिनेट करेंगे, v1 निकलेगा, तो हम ऐसे करेंगे v1 माइनस u2 यहां प्लस v1 करेंगे इज इक्वल टू v2। सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, यहां पर हम सबस्टिट्यूट करेंगे क्या, u1 माइनस u2 प्लस v1। सो यहां इसके बदले हम डालेंगे u1 माइनस u2 प्लस v1। सो देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, और फाइनली वी लेफ्ट विद, ओके। सो हम एक काम करेंगे, यहां पर देखिए, ये सबस्टिट्यूट करके, ये सबस्टिट्यूट जब हम इसमें करेंगे, यहां पर मैं रब करता हूं, यहां पर दिखाऊंगा, देखिए अब क्या होगा हमारे पास। सो इट इज m1 u1 माइनस v1, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहां पर क्या है, इज इक्वल टू, फिर यहां पर है m2 v2 के बदले क्या डालोगे, v2 के बदले डालोगे u1 माइनस u2 प्लस v1, फिर अपना क्या है माइनस u2, ओके। सो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास आएगा m1 u1 माइनस m1 v1, ओके, इज इक्वल टू m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1
माइनस M2U2। ये देखिए बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। अभी हम V को निकालेंगे, ठीक है। सो देखिए अब V1 कहां कहां है, एक तो यहां है, एक तो यहां है ना। तो हम एक काम करेंगे, हम यहां पर ऐसे करेंगे, ठीक है। V1 को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक साइड में लाएंगे V1, ठीक है। सो अब हम एक काम करेंगे, यहां पर जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1। V1 को इधर लाया तो हमने ये इक्वेशन लाई। सो अब हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, देखिए, सो लेट्स गो विद दिस। सो M1 U1 यहाँ पर अपना ही है, फिर यहां से लाइए, देन यहां पर, देन माइनस M2 U1, ये देखिए इधर को लाया, सो M2 U1, ठीक है। फिर क्या है, फिर ये देखो M2 U2, यहां पर M2 U2, ये यहां पर आएगा प्लस ट्वाइस M2 U2, गॉट इट बेटा, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू, ये देखिए यहां पर आएगा ये M1 V1 प्लस M2 V2। देखिए, अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए क्या करेंगे हम, ये हमें V1 निकालना है ना, तो ये जो V1 है मैं एक ही साइड में लूंगा, बाकी सब इस साइड में। सो M1 U1 अपना ही था, जब M2 U1 यहां पर ये पॉजिटिव था, यहां पर नेगेटिव आया, तो ये देखो माइनस M2 U2 माइनस M2 U2 हो गया ना, ट्वाइस M2 U2। जब इधर लाएंगे तो प्लस ट्वाइस M2 U2 इज इक्वल, ये जब M1 V1 वहां वो प्लस बन जाएगा, और अपना M2 V1 अपना वहां पर है ही, M2 V1 अपना वहां पर है ही। देखिए आप फर्दर क्या करेंगे, हम यहां पर हम निकालेंगे M1 माइनस M2 और यहां U1 कॉमन निकालेंगे, U1 कॉमन निकालेंगे, प्लस 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 ट्वाइस M2 ये U2 कॉमन इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, यहां पर देखिए M1 प्लस M2 यहां पर V1, खत्म मामला। देखो V1 आ गया हमारे पास, ब्यूटीफुली हमने डिराइव किया, ठीक है ना। सो देखिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, 11th में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये डेरिवेशन दी। बट जो एंट्रेंस में है ऐसी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको जुबानी याद रखना पड़ेगा फाइनली। तो देखिए यहां पर क्या है, दिस इज M1 माइनस M2, यहां पर क्या है, यहां पर U1 है, प्लस ट्वाइस M2, यहां पर U2 है, वो डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे M1 प्लस M2, ये देखिए M1 प्लस M2, तो दिस कम्स आउट टू बी V1। सो जो हमारे पास V1 आया, देखिए V1 कितना आया, इसको इससे डिवाइड करेंगे, सो V1 आया M1 प्लस माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो यहां पर क्या है U1, फिर आया प्लस ट्वाइस M2 डिवाइड बाय, यहां पर क्या आया M1 प्लस M2 और यहां आया बेटा U2। देखिए ये इक्वेशन है आपके लिए V1 के लिए, ये देखो V1 निकला इन टर्म्स ऑफ U1 U2। ये तो टारगेट था हमारा, यही तो टारगेट था हमारा कि हमें निकालना है V1 इन टर्म्स ऑफ U1 एंड U2। V1 इन टर्म्स ऑफ U2 कहां से किया, वो जो तीसरी इक्वेशन आई थी, तीसरी इक्वेशन से हमने V2 का वैल्यू निकाला, उसको एलिमिनेट किया इस मोमेंटम इक्वेशन में, तो V1 आ गया। तो फिर क्या करेंगे, फिर इसी तरीके से उसी तीसरी इक्वेशन से हम V1 निकालेंगे, और जब V1 निकालेंगे उसको एलिमिनेट करेंगे किसमें, इक्वेशन मोमेंटम इक्वेशन में, तो V2 निकल के आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा V2, मैं ये सब रब करके आपको जुबानी बता। देखो बेटा एंट्रेंस में इतना आपके पास टाइम नहीं होता, आपको इस जुबानी याद रखना पड़ेगा। देखिए जुबानी क्या याद रखना पड़ेगा, सिमिलरली आप करोगे ऐसे, तो आप लिखोगे सिमिलरली फॉर V2, सिमिलरली फॉर V2, ओके। V2 क्या आ जाएगा, देखो कैसे आप याद रखोगे V2, वरना क्या करना है, वरना आपको मैथमेटिक्स करना है, वहां पर थर्ड इक्वेशन से आपको V1 निकालना है। बेटा V1 निकाला, उसको सबस्टिट्यूट करोगे आप मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन में, तो वहां जब एलिमिनेट हो जाएगा V1, तो V2 निकल के आ जाएगा, वो इस तरह। तो आपको जस्ट रिप्लेस करना है, जहां 1 वहां 2 लिखना है, M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M2 प्लस M1। देखिए जहां क्या है, जहां 1 है वहां 2, जहां 2 वहां 1, तो ऐसे रिप्लेस करना है। तो यहां पर आएगा U2, ठीक है। तो फिर प्लस 2M1, यहां पर 2M1 आ जाएगा, डिवाइड बाई M2 प्लस M1 और यहां पर आएगा U1। बस जस्ट आपको ये करना है, देखिए 1 को 2 से रिप्लेस करना है, आपकी वो इक्वेशन आएगी ये U2 से। तो ये हमारी इक्वेशन जिगर आ गई, ठीक है। मैं फिर से आपके लिए बताता हूं, ये इक्वेशन आप याद रखना। जो बच्चे हमारे एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है उनके लिए ये मैथमेटिक्स या डिराइवेशन जरूरी नहीं है, लेकिन जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं हमारे, उनके लिए ये डिराइवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फाइनली हमने क्या किया, लास्ट इक्वेशन 1 डायमेंशन, यहां पर बॉडी नंबर 1 इसकी वेलोसिटी U1, यहां पर बॉडी नंबर 2 यानी M2 मास है, उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वो U2 है। कोलाइड के बाद इसका M1 और इसकी स्पीड है V1,
और इसकी स्पीड जो है वो m2, इसकी स्पीड हमने v2 मानी। ओके, डायरेक्शन वगैरह जो है ना बेटा, डायरेक्शन आप बोलेंगे आपने सिर्फ राइट हैंड साइड में डायरेक्शन ली, नहीं, जब हमारे पास न्यूमेरिकल आएगी अगर वहां पर डायरेक्शन चेंज होगी वो खुद ब खुद वहां फ्लैश हो जाएगी नेगेटिव में, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए आप हम पर बाद में सारा कुछ करेंगे, ठीक है। यहां देखिए आप जिगर, तो यहां जो m1 v1 जो हमारे पास वेलोसिटी आ गई वो किसके बराबर आ गई, देखिए वो आ गई m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, एक तो ये आ गई, ओके फाइन। तो यहां पर आपने क्या दिया, यहां पर u1 प्लस ट्वाइस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और यहां पर आया u2, और v2 जो है वो है m2 माइनस m1 डिवाइड बाय, एक्चुअली है m2 प्लस m1, मैं उसके बदले भी लिखूंगा m1 प्लस m2 ही, बिकॉज m2 प्लस m1 लिखिए यार, m1 प्लस m2 एक ही जैसी बात है। सो यहां पर आपका u1 के बदले u2 आ जाएगा प्लस ट्वाइस m1 जहां 1 वहां 2, सो यहां लिखना था m2 प्लस m1, मैं लिखूंगा m1 प्लस m2 ताकि आपको याद रहे। सो यहां पर u1 देखिए याद रहा। सो जब आपको v1 निकालना है आपको करना है m1 माइनस m2, याद रखिए, जब जुबानी याद रखनी पड़ेगी ना इक्वेशन आपको, ओके, तो आप ऐसे याद रखोगे, जब आपको v1 निकालना है तो आपको 1 की तरफ देखना है, ओके, 1 की तरफ देखना है, तो m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 u1 प्लस ट्वाइस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। जब v2 निकालना हो तो आपको 2 की तरफ देखना पड़ेगा, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस ट्वाइस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। ये आपकी बहुत काम की चीज है, इसको आप अच्छे से इसको आप याद रखो, अच्छे से याद रखो, बिकॉज इसी में सब कुछ आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। देखिए मैं कुछ न्यूमेरिकल देता हूं आपके लिए, तो हो सकता है हमें वो बहुत काम आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आपका 11th के लिए है कि आपको डिराइव करना पड़ेगा। आपने डिराइव किया, डिराइव करके आपने यहाँ पर इक्वेशन लाए। ओके, अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और उससे क्या होगा, हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 2 kg बॉडी, ओके, 2 kg बॉडी है, ये कोलाइड कर रही है 3 kg बॉडी के साथ। देखो डियर स्टूडेंट्स, कीनली ऑब्जर्व करो, 2 kg वाली बॉडी 3 kg बॉडी वाली के साथ कोलाइड करती है, और मैं मानता हूं इसकी स्पीड जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड जो है बिफोर कोलिजन वो है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड किए, और कोलिजन के बाद यहां पर 2 kg बॉडी है, और ये जो है ये 3 kg बॉडी है, 3 kg बॉडी है, इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 कहलाएगी, इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 कहलाएगी, एज पर अवर नोमेनक्लेचर, जो हमने नोमेनक्लेचर रखा है अभी। आपको बोला गया है, अब क्वेश्चन खुद बना लीजिए, 2 bodies, one is having mass 2 kg moving with velocity 5 meter per second, and another is having mass of 3 kg moving with the velocity of 2 meter per second. They collide elastically, ठीक है ना, in 1D, 1 dimension में, और आफ्टर कोलिजन फाइंड देयर वेलोसिटीज। अगर आपको बोला गया ऐसे, ठीक है, सपोज 2 bodies, ऐसे करेंगे हम, 2 bodies, ठीक है ना, 2 bodies having mass 2 kg and 3 kg having mass 2 kg and 3 kg respectively. If the 2 kg body जो है moves with velocity, या आप खुद लिखो बेटा, velocity कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, and 3 kg with yes 2 meter per second. Okay, फिर if they collide elastically, अगर उन्होंने इलास्टिकली कोलाइड किया in 1D, find speed of और velocity या speed of body, speed या velocity, okay, speed ही लिखेंगे, speed of body 2 kg बॉडी, कितने, 2 kg बॉडी आफ्टर कोलिजन, ये बन गया सवाल। मैं अब करता हूं, क्या है, फिर से मैं बोलता हूं सवाल क्या है। सवाल है हमारे पास एक 2 kg की बॉडी है और 3 kg की बॉडी है, वो इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं। ओके, इलास्टिकली मैं वर्ड बोल रहा हूं, कोलाइड कर रहे हैं 1D, और उनकी स्पीड जो है 2 kg की वो 5 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की है 2 मीटर पर सेकेंड। आपको बताया गया है फाइंड इस इन गिवन कॉन्फ़िगरेशन, इन गिवन कोलिजन, जो गिवन कोलिजन है, फाइंड क्या फाइंड करना है, फाइंड
speed of 2 kg body, ओके। मतलब आपको क्या करना है, आपको V1 निकालना है ना, V1 निकालना है, ओके। 2 kg बॉडी की स्पीड क्या है, हमने V1 दी है, तो हमें वही निकालना है। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड इट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें स्पीड जब निकालनी है, हमें V1 निकालना है, हमें पता है इसके लिए फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है m1 माइनस m2, है ना, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और यहां पर क्या है, यहां पर u1 है, देन प्लस ट्वाइस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और यहां पर हमारा है u2, ये है ना, हमें V1 ही निकालना है। V2 भी अगर बोलेंगे तो हम भी वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, V1 आप निकालिए, 2 kg बॉडी की स्पीड, V1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 कितना है 2 है, ये कितना है 3, 2 माइनस 3 है ना, 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 हो गया ये, और u1 कितना है, u1 5 है ना, प्लस, और यहाँ पर क्या है, इट इज 2 इंटू m2 क्या है, m2 है 3, 2 प्लस 3, तो यहाँ पर क्या है, u2 क्या है, u2 है 2, ओके। तो देखिए बेटा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 5 इंटू 5 देन प्लस यहाँ पर 2 3 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, ओके। सो क्या है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, सो -1 2 स्क्वायर 12 बाई 5, okay, so V1 comes out to be -1 plus 12 by 5, so यहाँ पर क्या बनेगा, V1 comes out to be -5 plus 12 divided by 5, कितना आया जवाब, V1 is equal to 7 by 5 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका आंसर, ये आंसर है। देखो अच्छा लगता है ऐसे, है ना, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम कॉन्सेप्ट को ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। ये मैंने क्वेश्चन दिया था, 2 kg एंड 3 kg बॉडी इलास्टिकली कोलाइड कर रही है, 1 डायमेंशनल कोलिजन है, और आपको जिनकी स्पीड पहले ही 5 मीटर पर सेकंड है 2 kg बॉडी का, और 2 मीटर पर सेकंड 3 kg बॉडी का, आफ्टर कोलिजन बताया गया स्पीड ऑफ बॉडी नंबर 1, हमें इसलिए बताया गया इतना। अगर हमें ये भी बोलेंगे V2 निकालो, तो V2 के लिए क्या फॉर्मूला है, V2 के लिए फॉर्मूला है m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यहाँ पर u2 आएगा, फिर ट्वाइस m1 प्लस m2, यहाँ पर u1 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ करेंगे m2 माइनस m1, तो 3 माइनस 2, यहाँ पर 1 आएगा, डिवाइड बाई 5, 3 प्लस 2 5, सो 1 बाई 5 इंटू u1 कितना है 2, सो 2 बाई 5 यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू m1 2 2 4 4 बाई 5 u2 कितना है, u2 जो है वो 2 है ना, 4 2 8 बाई 5 आएगा, सो यहाँ पर 8 बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 बाई 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा -1 डिवाइड 5, सो यहाँ पर -1, सो -1 प्लस 8 बाई 5, सो 3 बाई 5 आपका आंसर निकलेगा उस बॉडी नंबर 2 का, अगर आपको पूछा जाएगा, ओके। मैं इसको रब कर रहा हूं, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चले जाएंगे, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। फॉर एनी कंफ्यूजन, अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कहीं कंफ्यूजन होगा, मैं आपको लास्ट में अपना फोन नंबर दूंगा, उस फोन नंबर पे आप मेरे को फिर कॉल कीजिए, ठीक है। सो वो मैं लास्ट में दूंगा, लेकिन आप देखिए, आप हम न्यूमेरिकल दूसरा अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। हम कोई और न्यूमेरिकल करते हैं, सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर एक न्यूमेरिकल ऐसे देता हूं, यहां पर मैं 1 kg बॉडी का दूंगा, मैं 1 kg बॉडी का, और यहां पर मैं 2 kg बॉडी रखता हूं, ठीक है, ओके। चलिए हम जनरल लेते हैं, हम 1 kg के बदले 1m लेंगे और 2 kg के बदले 2m लेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, टेस्ट डिफरेंट आ जाएगा, ओके। दिस इज 1m, दिस इज 2m, ओके। सो यहां पर इसकी वेलोसिटी में v मानता हूं, और ये अपोजिट में जा रहा है 2v, क्या कोलिजन होगा, यस कोलिजन होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 1m और 2m की मास वाली बॉडी जो दो है, वो एक दूसरे के साथ इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, और जब कोलाइड किए कोलिजन के बाद क्या हुआ कि ये जो 1m बॉडी है इसकी वेलोसिटी हम v1 लिखेंगे, और ये जो 2m वाली बॉडी है इसकी वेलोसिटी हम v2 लिखेंगे। हमें इन द गिवन कोलिजन, इन द गिवन इलास्टिक कोलिजन, अच्छा, इन द गिवन इलास्टिक कोलिजन, तो मैं आपको बता रहा हूं, इन द गिवन इलास्टिक कोलिजन, जो इलास्टिक कोलिजन है 1D इलास्टिक कोलिजन, इन द गिवन 1D इलास्टिक कोलिजन, जो 1D 1 डायमेंशन मतलब बॉडी एक ही एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, अगर ये दो एक्सिस पे मूव करते हैं एक्स और वाई, तो ये 2D बन जाता है ना, तो ये इसलिए मैं बोलता हूं इन द गिवन 2D इलास्टिक कोलिजन फाइंड आपको क्या फाइंड करना है, V1 एंड V2, ओके। फिर ऑप्शंस बहुत सारे आ जाएंगे, हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस आपको आ जाएंगे, तो एंट्रेंस में उन ऑप्शंस में से आपको जवाब देना, जैसे मतलब एक
मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पर बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे 3v 0, 0 3v, -3v 0, ओके, देन होगा 0 -3v यानी v1 एंड v2 के बारे में। फिर आपको जो करेक्ट वन होगा उसको टिक मारनी पड़ेगी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड, देखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा। v1 निकालना है, यू नो v1 किसके बराबर है, m1 - m2, m1 क्या है, m1 ये है, सो 1m यानी m - m2 मीन्स 2m डिवाइड बाय m1 + m2, सो m + 2m, ओके, इनटू u1 कितना है, v है, ओके, बिकॉज u1 इज हियर v, u1 इज हियर v, u2 इज हियर 2v, ओके, सो देन प्लस ट्वाइस m2 के बदले क्या है, 2m है ना, m2 के बदले 2m है ना, डिवाइड बाय m1 + m2, सो m + 2m, ओके, इनटू u2, अब u2 के बदले क्या है, v, 2v, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मैं इसको माइनस लिखता हूं। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस क्यों, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको माइनस लिखना पड़ा, ठीक है, इसलिए इसको माइनस लिखना पड़ा। ओके, सो देखिए आप, अब माइनस लिखा तो क्या आ जाएगा, यहां पर v1 इज इक्वल टू, शाबाश, v1 इज इक्वल टू, यहां पर -m बचेगा, यहां पर 3m बचेगा, तो यहां इंटू v, फिर क्या आएगा, देन ये प्लस माइनस होगा, माइनस, ठीक है ना, 2 2 4 4 2 8m v डिवाइड बाय यहां पर 3m, देखिए m एंड m कैंसिल, सो माइनस, सो v1 कम्स आउट टू बी -v/3 -8v/3, सो टोटल कितना हुआ, v इज इक्वल टू -9v/3, ठीक है ना, सो v कम्स आउट टू बी -3v, v1 कम्स आउट टू बी -3v, तो पता चला जो ये बॉडी है, कौन सी वाली बॉडी, जो ये बॉडी है, इसका पता चला ये कितना है, -3v। वहां पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे ना, वहां पर ऑप्शन ऐसे होंगे, से ए बी सी ऑप्शन, ए बी सी, तो पहला आएगा से डी बी ऑप्शन होगी, सो पहला आएगा 3v, 0, फिर आएगा -3v, 0, फिर आएगा 0, 3v, फिर आएगा 0, -3v, यानी v1 और v2 के बारे में। तो देखिए कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। सो फिलहाल v1 आया -3v, चलिए अब v2 को निकालेंगे हम, ठीक है, चलिए v2 को निकालेंगे, दिक्कत v2 जो है, अब v2 जब निकालेंगे हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी पड़ी हुई है, क्या है फॉर्मूला, m2 - m1, याद है आपको, m2 - m1 डिवाइड बाय m1 + m2, अगर याद होगा, इंटू u2, बिकॉज वहां u1 है, यहां u2 है, देन प्लस फिर क्या है, ट्वाइस m1 डिवाइड बाय m1 + m2, और यहां पर आ जाएगा u1, ओके, सो देखते हैं उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, m2 - m1, m2 क्या है, 2m -1m, 2m -1m, सो यहां बचेगा m, ठीक है, m डिवाइड बाय m + 2m, m1 + m2 यानी m + 2m, तो ये बन जाएगा 3m, डियर्स अंडरस्टैंड। और u2 क्या है, -2v, u2 है ना 2v, u2 है -2v, प्लस, बिकॉज माइनस भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, हमारे जो फॉर्मूलाज है ना उसमें हमने राइट हैंड साइड में सारी डायरेक्शन ली थी, तो ये तो उसके अपोजिट आ रहा है, इसलिए माइनस लेना पड़ेगा, तो देन प्लस यहां पर ट्वाइस m1, सो ट्वाइस m1 कितना है, m1 है 1m यानी m डिवाइड बाय यहां पर 2 प्लस है, ये हो गया 3m, ओके, इनटू u1 है v, सो ये कितना बन गया, ये बन गया -2mv, अच्छा ओके, ये m एंड m कैंसिल, सो बन गया -2v/3, ये बन गया प्लस m एंड m कैंसिल, ये बन गया प्लस 2v/3, तो ये कट गया, सो v2 कम्स आउट टू बी 0, सो व्हाट इज द ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ओके, v2 कम्स आउट टू बी 0, सो v2 पता चला कितना है, 0 है, सो ऑप्शन नंबर 2 बी इज करेक्ट, सो हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। सो इस तरीके से मतलब आपको एंट्रेंस में आ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस वहां पर होंगे, तो उसमें से आपको देखना करेक्ट वन कौन है, ठीक है ना, तो करेक्ट हमारा आया यहां पर -3v, 0, बिकॉज v1 इज -3v एंड v2 इज 0। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड इट, ठीक है, आपने अंडरस्टैंड किया। और न्यूमेरिकल कुछ करते हैं। सो ये इसीलिए मैंने बोला ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, ये आपके बड़े काम की चीज है, जब भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे ये आपके काम आ जाएंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। नाउ अब देखिए हम एक और बॉडी लेते हैं, हम लेते हैं यहां पर 4 kg की बॉडी लेते हैं, ठीक है, 4 kg की बॉडी लेते हैं, यहां पर 2 kg की बॉडी लेते हैं, 4 kg की बॉडी, 2 kg की बॉडी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इसको मैं रेस्ट पे रखता हूं, ये सपोज रेस्ट पे, ये रेस्ट में, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को हमें ध्यान देना पड़ेगा,
ठीक है। तो इसके बाद ये कोलाइड हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ, क्या हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ। इलास्टिक कोलिजन जब हुआ तो फिर क्या हुआ, उसके बाद जब 4 kg बॉडी की जो वेलोसिटी है, से फॉर एग्जांपल वो मान लीजिए v है, जो भी है वो देखा जाएगा, वो मान लीजिए v1 और ये जो है 2 kg का जो v2 है। ओके, ये गिवन नहीं है। व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन इज in the given elastic collision, in the given head on yeah elastic collision, in the given elastic collision जो given elastic collision है, जो यहां पर आपको given है, ठीक है ना। given elastic collision में क्या आपको करना है, find the fraction of loss in kinetic energy of 4 kg body, जो 4 kg बॉडी में लॉस किया है काइनेटिक एनर्जी। आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी तो इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है, लेकिन वो तो मैंने पहले ही बोला वो होल सिस्टम की कंजर्व रहती है, और ड्यूरिंग द कोलिजन उसमें चेंज आती है। फाइनली काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, लेकिन इसका मतलब नहीं एक इंडिविजुअल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इंडिविजुअली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं भी हो सकती है ना, लेकिन टोटल ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी इलास्टिक में, वो तो टोटल है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन ऑफ लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी नंबर 1 यानी 4 kg वाली बॉडी में, हमें ये देखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसीलिए हमें एक धोखा लग सकता है कि हम बोलेंगे जनाब ये जो इलास्टिक कोलिजन है वहां पर तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, वो कैसे लॉस होगी, ये ना सिस्टम की नहीं बोलेगी, सिस्टम की तो बराबर काइनेटिक एनर्जी होगी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, बिकॉज ये इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन ये बोला गया एक ही बॉडी का बॉडी नंबर है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन करना है। देखिए अब क्या करेंगे हम आगे, कैसे इसको करेंगे, पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, ठीक है ना, एंड बिफोर कोलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी बोलिए। अब बॉडी नंबर 4 kg, इसको हम बॉडी नंबर फिलहाल 1 रखेंगे, बॉडी नंबर 1 रखेंगे नाम, इसका बॉडी नंबर 2, ओके 1। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी नंबर 1 बिफोर कोलिजन, ठीक है ना, यानी इनिशियली क्या है इसकी, I is initially kinetic energy of body number 1 initially, that is half of mv square, m mass क्या है इसका, mass है 4, so 4 kg v square minus u square, पता चला वो कितना है, वो है twice u square। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी नंबर 1। बॉडी नंबर 1 यानी 4 kg बॉडी जो है उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 2u square है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 2u square है। अब हमें देखना है यहां पर क्या है, मगर V1 हमें पता नहीं है, V1 हमें पता नहीं है, वो निकालेंगे, ठीक है, V1 को हम निकालेंगे, फिर हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी निकालेंगे, ये अपनी जगह याद रखना, ठीक है। चलिए V1 पहले निकालते हैं, हमारे लिए V1 निकालना आसान है, ठीक है। V1 किसके बराबर है, देखिए बेटा, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2, देखिए M1 हुआ 4 माइनस M2 हुआ 2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, सो ये है इनटू U1 कितना है, वो तो U है, प्लस ट्वाइस M2 जो है वो 2 है, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 यानी 4 प्लस 2 इंटू U2 हमारे पास रेस्ट में है तो 0 रेस्ट में 0, सो दैट मीन्स U1 इज इक्वल टू दिस एंड U2 इज इक्वल टू 0, वो तो है ना, सो ये 0 ये टर्म ही खत्म हो जाएगी तो 0 बन जाएगी, सारा 0, सो ये खत्म हो जाएगी ये टर्म। सो वी आर लेफ्ट विद V1 कम्स आउट टू बी 4 को 2 काटो तो 2 डिवाइड बाय 6, 2 बाय 6, सो U by 3 V1 comes out to be V by 3, so V1 is equal to U by 3, ओके, ठीक है, पता चला कैसे, 4 को 2 काटो 2 बच जाएगा 4 ओके, U by 4 बन जाएगा, ओके। सो देखिए यहाँ पर क्या आएगा 4, सो यहाँ पर 2 बचेगा, 4 प्लस 2 होगा 6, सो 2 3 6, तो U by 3, ओके, U by 3, सो वी कैन कम आउट टू नो दैट दिस इज U by 3, ओके। अब आप फाइनल निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इसकी, निकाल सकते हैं ना, बहुत इजी, सो बहुत इजी। देखिए फाइनल क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ओके, इन द गिवन हमें निकालनी है, तो देखिए फ्रैक्शन ऑफ लॉस हमें बाद में दिखाना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन V1 भी निकाला हमने, ठीक है, इसको रहने दो, ये हमें जरूरत है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द बॉडी नंबर 1 इज इक्वल टू बॉडी नंबर 1 की फाइनल बॉडी नंबर 1 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सो दिस इज हाफ ऑफ m, उसका मास है 4 v स्क्वायर, तो वो है U by 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका ये है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी नंबर 1 फाइनल जो है वो कितनी है, 2 2s are 4, यहां पर बचेगा 2, इट इज U स्क्वायर बाय 9, सो 2 by 9 U स्क्वायर। अच्छा, क्या 2 U स्क्वायर के बाद काइनेटिक एनर्जी हमें लॉस निकालनी है ना, लॉस,
तो लॉस मतलब हमें इनिशियल से फाइनल को माइनस करना पड़ेगा, वो है लॉस। बट फिर हमें लॉस नहीं बोला गया, हमें फ्रैक्शन ऑफ लॉस बोला गया, यू नो, फ्रैक्शन ऑफ लॉस, फ्रैक्शन ऑफ लॉस। तो मैं इसको, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी 1 फाइनल, क्योंकि माइनस करना मैं पहले ही रखूंगा, बिकॉज 2u² जो है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, तो मैं यहां लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी नंबर 1 जो इनिशियली है डिवाइड बाय 9, ये देखो, बिकॉज दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब आप देखिए, अब हम अच्छे से कर सकते हैं लॉस क्या है, या अगर आप ऐसे नहीं करोगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में ही करोगे वैल्यूज में, तब भी ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नाउ इट इज अ लॉस। ओके, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी नंबर 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बॉडी नंबर 1 का इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी बॉडी नंबर 1 का फाइनल। सो ये इनिशियल जो है, इनिशियल कितना आया बताइए, इनिशियल कितना आया, इनिशियल हमारे आया कितना, ओके इसको रहने दीजिए, काइनेटिक एनर्जी 1 इनिशियल, बिकॉज लॉस ही देखनी है ना, माइनस ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दिस इज काइनेटिक एनर्जी 1 का इनिशियल डिवाइड बाय 9, तो इसको कॉमन निकालिए, काइनेटिक एनर्जी 1 इनिशियल कॉमन निकालिए, 1 माइनस 1/9, सो यहां क्या बचा, यहां बचा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ बॉडी नंबर 1, और यहां बचा 8/9, ओके कॉमन निकालिए 8/9, दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब लेकिन वहां पर तो लॉस नहीं बताया गया ना, वहां पर फ्रैक्शन ऑफ लॉस बताया गया, ठीक है, क्या बताया गया, फ्रैक्शन ऑफ लॉस, क्या बताया गया, फ्रैक्शन ऑफ लॉस। देखो बेटा फ्रैक्शन ऑफ लॉस कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन ऑफ लॉस, फ्रैक्शन ऑफ लॉस, फ्रैक्शन ऑफ लॉस, फ्रैक्शन ऑफ लॉस, फ्रैक्शन ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 1 इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी नंबर 1 जो इसमें है डिवाइड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, यानी बिफोर कोलिजन जो थी वही ओरिजिनल होती है। तो व्हाट इज लॉस, लॉस यहां पर आया ना, काइनेटिक एनर्जी बॉडी नंबर 1 का जो इनिशियली है, सो इंटू 8/9, ओके, सो यहां पर काइनेटिक एनर्जी 1 का जो इनिशियली है वही ओरिजिनल है, ये कट जाएगा, सो 8/9, सो फ्रैक्शनल लॉस जो है, फ्रैक्शनल लॉस जो है, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी नंबर 1 कितना है, 8/9। ये आया था नीट में एक क्वेश्चन, ठीक है, नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए फ्रैक्शनल लॉस कितना है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बेटा जरूरी नहीं है ऐसा करना, आप क्या करोगे, आप ऐसे जो वैल्यूज आए वैल्यूज में ही रखो, बाद में वो फिर से आपको कैंसिल आउट होके 8/9 आ सकता है, ओके, वो कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आई बात, अच्छा ये समझ में आया आपको क्या करना है, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय ओरिजिनल। ऐसे अगर आप फिर पहले से ही देखो जिगर, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आप पहले से ही फॉर्मूला बना के रखोगे, जैसे आप पहले से ही लिखोगे लॉस, फ्रैक्शनल लॉस, जैसे आपको फ्रैक्शनल लॉस, फ्रैक्शनल लॉस, फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, किसमें, काइनेटिक एनर्जी बॉडी नंबर 1 की, आप ऐसे लिख सकते हो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बॉडी नंबर 1 डिवाइड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी नंबर 1। तो फॉर्मूला बना के रखेंगे, दिस इज काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी नंबर 1 का इनिशियल है माइनस काइनेटिक एनर्जी बॉडी नंबर 1 का जो फाइनल है, इनको जो तो लॉस है, ओरिजिनल तो यही है ना, काइनेटिक एनर्जी 1 का इनिशियल। तो ये आप फॉर्मूला पहले से ही रखो, ये फॉर्मूला यूज करो, दिस इज द फॉर्मूला, फिर आप वो निकालो, सारी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनली, सब आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है इस तरीके से, आप किसी भी तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। फाइनली ये फॉर्मूला जब आपको बनी, तो आप इनिशियल जब निकालोगे काइनेटिक एनर्जी बॉडी नंबर 1 का जो इनिशियली है, दैट इज हाफ ऑफ m, इसका मास कितना है 4v², इसका है u², सो ये बन गया 2u², ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी बॉडी नंबर 1 की जो फाइनली है वो है हाफ ऑफ m, इसका m तो 4 है, लेकिन u इस वक्त है v, लास्ट v², v/3 का होल स्क्वायर, सो ये बन गया 2 2s are 4, सो बन गया 2u² डिवाइडेड 2 3 3s are 9, 3 3s are 9। तो अब ये वैल्यूज आप यहां इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन गेट द आंसर, मतलब आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे 2u² यहां पर इस फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला जब आप यूज करोगे यहां लिखोगे आप, दिस इज 2u² माइनस 2u²/9 डिवाइड बाई 2u², ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो 2u² कॉमन आ जाएगा, 2u² कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1/9 डिवाइड बाई 2u², ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8/9 रहा वहां से भी, सो 8/9 इज आंसर, ओके, 8/9 इज आंसर। सो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन 1D, इलास्टिक कोलिजन इन 1D। फिर से मैं बताता हूँ, ये जो काइनेटिक एनर्जी लॉस है ना, ये सिर्फ इंडिविजुअल बॉडी में, टोटल सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है इलास्टिक कोलिजन में, यहाँ पर कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, यू कैन कॉल मी और यू कैन राइट मी टेक्स्ट मैसेज ऑन दिस 9797012346, ये मेरा नंबर है,
ठीक है, और मेरा ईमेल भी साथ में है, sajadphysics@gmail.com। आप मेरे को मेल भी कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, आप मेल भी कर सकते हो अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हुआ। तो इस टॉपिक में हमने 1D इलास्टिक कोलिजन पढ़ा। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके ऊपर, उसको आप जरूर वॉच कीजिएगा। तो वो मैं दूंगा इलास्टिक 2D कोलिजन, और उसी लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा इन इलास्टिक कोलिजन को भी टच करने की, सो दैट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं घर में बैठे हुए उनको फायदा पहुंचे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आई बिड यू गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। Assalamu alaikum dear students. In last previous lecture we actually talked about the collision. Okay, so now there we derived this one dimensional collision, elastic one dimensional collision. So the previous topic was elastic one dimensional collision. So वहां पर हमने क्या किया था, हमने velocity निकाली थी v1 इज इक्वल टू, यानी अगर बॉडी दो होंगे यहाँ पर, अगर बॉडी दो है लाइक दिस, देखिए बेटा, अगर बॉडी यहाँ पर m1 mass है, यहाँ पर m2 mass है, इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन u1 है और इसकी u2 है, और ये कोलाइड किए इलास्टिकली वन डायमेंशनल कोलिजन है, इलास्टिक 1D कोलिजन। सपोज ये कोलिजन किए, और जब कोलिजन किए तो बॉडी नंबर ये मास नंबर 1, इसकी वेलोसिटी हमने v1 रखा, और जो m2 है इसकी वेलोसिटी हमने v2 रखी। फिर हमने इसके लिए डिराइव फार्मूलाज किए थे, याद है आपको, हमने डिराइव किया था v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और यहां पर हमने u1 रखा था इनिशियल वेलोसिटी प्लस ट्वाइस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और यहां पर हमने रखा था u2। और सिमिलरली v2 जब हमने निकाला था, वो निकाला था m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यहां पर u2 है, प्लस यहां पर ट्वाइस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और यहां पर u1 आ जाएगा लाइक दिस। पता है, याद रखना, जहां पर 1 है वहां यहां 2 करना है। सो 1 के बदले 2 के बदले 1, ये एक्सचेंज करने एक दूसरे से, ठीक है। सो यहां पर आता है उस हिसाब से m2 प्लस m1, बट m1 प्लस m2 और m2 प्लस m1 वो एक ही जैसी बात है। तो यहां देखिए m2 के बदले m1, यहां देखिए m1 के बदले m2 लिखना था, m2 के बदले m1, बट m2 प्लस m1 प्लस m2 ही होता है। सो यहां पर u2 के बदले u1, यहां u1 के बदले u2, ठीक है। अब हम स्पेशल केस करने जा रहे हैं, ठीक है। स्पेशल केस, तो स्पेशल केस क्या है वो आप देखिए। स्पेशल केस क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ये है कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ, वो v1 v2 मैंने आपको निकाला इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2, ये है फॉर्मूलाज। लास्ट लेक्चर में हमने इनको डिराइव किया। अब स्पेशल केस है, स्पेशल केस में आपको दे रहा हूं, ठीक है। वो ये है स्पेशल केस, देखिए यहां पर स्पेशल केसेस, स्पेशल केस, ओके। स्पेशल केस क्या है, व्हेन टू masses आर आइडेंटिकल, सो m1 इज इक्वल टू m2, हम कोलिजन के लेक्चर में हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में v1 और v2 डिराइव किया, ये मैंने वहां डिराइव किया था। अब हम स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं। इफ द कोलिजन इज बिटवीन द आइडेंटिकल बॉडीज, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल बॉडीज, देयर masses आर सेम। अगर masses सेम है तो बताइए यहां पर क्या होगा, देखिए ये 0 हो जाएगा, बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2। जब ये बराबर होंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये बन जाएगा m2, सो m2 डिवाइड बाई, ये दोनों बराबर, सपोज ये भी m2 है, m2 प्लस m2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा u2। सो v1 comes out to be u2, और v2 किसके बराबर आएगा,
देखो ना यहाँ पर V2 बिकॉज ये 0 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा देखो ना ट्वाइस M2, अगर इसको भी M2 मानेंगे M2 प्लस M2 2M2 वो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा U2। इधर देखिए व्हेन M1 इज इक्वल टू M2 ये 0 बन जाएगा, खत्म मामला, कैंसिल। अब यहाँ आए ये ट्वाइस M1, इसको भी M1 मान लीजिए, M1 प्लस M1 2M1 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 कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर U1। क्या बचेगा? U1। देखिए ब्यूटीफुल रिजल्ट, ब्यूटीफुल रिजल्ट। क्या देखा हमने? आफ्टर कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, जब इलास्टिक 1D कोलिजन होता है तो हमने देखा जो वेलोसिटीज बॉडी जो है वो एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंज करते हैं। देखो V1 इज इक्वल टू U2, V2 इज इक्वल टू U1, सो वेलोसिटीज एक्सचेंज। तो ये आप मोटे अल्फाज में याद रखोगे। क्या रखोगे? इन 1D इलास्टिक कोलिजन, इन 1D इलास्टिक कोलिजन, अगर 1D इलास्टिक कोलिजन होगा तो वेलोसिटीज और बॉडीज है, वेलोसिटी जो होती है ना बॉडीज एक्सचेंज, वो एक्सचेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या होता है? वो एक्सचेंज होते हैं, सीधे एक्सचेंज। बस याद रखना जब आइडेंटिकल बॉडीज 1D इलास्टिक कोलिजन में जाएंगे तो वो अपनी जो वेलोसिटीज है वो एक्सचेंज करते हैं। बस सिंपल सिंपल सिंपल। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ये दो बॉडीज हैं, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहां पर दूंगा एग्जांपल। ओके चलिए एग्जांपल देते, स्पेशल केस पे एक एग्जांपल और हो जाएंगे, फिर बाद में और हो जाएगी। सपोज ये जो है ये है 2 kg बॉडी और ये है 2 kg बॉडी, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, ठीक है। सो सपोज दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ये जा रहे हैं, ठीक है, ये इस स्पीड से जा रहे हैं, ये इस स्पीड से जा रहे हैं। कोलिजन तो होगा बिकॉज ये इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, तो कोलाइड करेंगे। और जब कोलाइड करेंगे मैं मानता हूं दोनों क्या है आइडेंटिकल। देखो इसके भी मैस 2 kg, इसका भी मैस 2 kg, वो है ना आइडेंटिकल मैस। तो दे विल सिंपली एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, सिंपली एक्सचेंज, मतलब इसकी 2 मीटर पर सेकंड बनेगी और इसकी 4 मीटर पर सेकंड बनेगी। सिंपल। ये भी 2 kg बॉडी है, ये भी 2 kg बॉडी है। देखा आपने कोई यहां पर मैथमेटिक्स नहीं करना है, न्यूमेरिकल ऐसे आ जाएगी। जब भी न्यूमेरिकल में इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन होगा और साथ में बताया होगा कि वो आइडेंटिकल है, तो जब आइडेंटिकल है एकदम आप ये लगा सकते हो कौन सा वाला, दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, तो खत्म मामला है ना, ज्यादा इसमें नहीं करने का। अब देखिए स्पेशल केस नंबर 2, ये आपको स्पेशल केस नंबर 2, इस पे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। देखिए अब ये देखिए स्पेशल केस नंबर 2। ओके 2 क्या है? हम मानते हैं M2 इज ग्रेटर देन M1, M2 इज ग्रेटर देन M1। कब? When U2 is 0, आप U2 0 लीजिए, यानी बॉडी नंबर 2 है वो रेस्ट में माननी है, ठीक है, रेस्ट में माननी है। सी सपोज ये M2 ग्रेटर देन, सो दिस इज M2, ये बड़ा है, ये M1 जो है छोटा है, ये मान लीजिए ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, ये बड़ी बॉडी है, इसके साथ इसको कोलिजन करना है, ठीक है। और क्या होता है फिर? देखो क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, जब ये छोटी बॉडी और ये बड़ी बॉडी को क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। सपोज इसकी वेलोसिटी U1 है, सपोज इसकी वेलोसिटी U2 है, जैसे हम मान के चले, तो क्या हो जाएगा इसका? जब छोटी बॉडी ये M1 है, ये M2 है, जब छोटी बॉडी बड़ी बॉडी के साथ कोलाइड करेगा, मतलब ऐसे मान लो खंबा आया, वहां पर बड़ा सा है, दीवार आया, दीवार के साथ यहां से गया कोई छोटा मोटा सा, ठीक है ना, कोई मतलब इंसान दौड़ के गया, कोई हम बोल सकते हैं बाइक दौड़ के गई, एक दीवार के साथ टकराई, बड़े दीवार के साथ हेवी, तो ये मान लीजिए वो छोटी सी बाइक, तो क्या हो जाएगा? जब वो टकराने के बाद वो वापस आ जाएगी। तो समझ लेना जो वेलोसिटी इसकी V1, जिसको हम V1 बोलते हैं आफ्टर कोलिजन, वो होगा -U1 ऐसे। और जो V2 होगा, ये V2 ये पहले भी रेस्ट में था, अब भी रेस्ट में है, बिकॉज U2 इज इक्वल टू 0, यहां पर हमने वही केस माना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, M2 इज ग्रेटर देन M1। देखिए कैसे प्रूव करोगे? M2 ग्रेटर देन M1, जब ये केस होगा U2 इज इक्वल टू 0, तो M2 बहुत ज्यादा है बड़े से M1 से, M1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज M2 बाय M1 क्या है? अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। देखिए यहां पर देखिए V1 क्या आएगा? V1 M2 इज ग्रेटर देन M1, तो ये नेग्लेक्ट करेंगे, यहां पर बचेगा -M2, तो यहां पर M1 प्लस M2, ये M1 तो स्मॉल है ना, उसको ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर -M2, यहां पर +M2, बिकॉज ये M1 नेग्लेक्ट हो जाएगा M2 के मुकाबले में। ऊपर बचेगा -M2, नीचे बचेगा +M2, M2 कैंसिल, बचेगा U1, ओके, बचेगा U1, बट यहां पर माइनस, तो -U1, देखो -U1 आया ना, तो ये क्या है? यहां पर बचेगा, यहां पर M1 नेग्लेक्ट हो जाएगा M2, तो देखो यहां पर बट U2 इज 0, ये केस मैंने लिया U2 इज 0, तो ये तो इसका मामला नहीं है ना, तो इसका मामला देखो बराबर आया V1 इज इक्वल टू -U1। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए सेकंड केस, और एक केस मैं बताता हूं आपको, थर्ड केस क्या है? नहीं जी, M1 ही ग्रेटर देन है M2 का,
और U2 जो है वो 0 है, यानी बॉडी नंबर 2 रेस्ट में। क्या है, ये बॉडी जो है M1 ये बड़ी है और ये छोटी मोटी सी बॉडी है M2, इसके साथ कोलाइड करेगा। इसकी स्पीड U1 है, इसकी स्पीड U2 है, ठीक है, U1 और इसकी स्पीड U2 है। अब बताओ बेटा क्या हो जाएगा, ये बॉडी, बड़ी बॉडी और छोटी बॉडी, इसकी V1 कितना होगा, इसकी V2 कितना होगा, इसका मैस M1 है, इसका मैस M2 है। यहां पर एक बात आपको करना है कि M1 इज ग्रेटर देन M2, यानी M2 नेग्लेक्ट हो जाएगा M1 के मुकाबले और U2 इक्वल 0। देखिए U2 इक्वल 0 ये तो खत्म हो जाएगा बिकॉज U2 इसमें आ रहा है 0, तो V2, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, V2। अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूं, दूसरे वो केस बता रहा हूं, पहले ये केस बता रहा हूं। ओके, ये केस बता रहा हूं। देखिए V1 किसके बराबर आएगा, V1। सो M1 माइनस M2, देखो M1 बड़ा है M2 से, M1 ग्रेटर देन M2 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, MM कैंसिल, तो बचेगा U1, ठीक है। तो दिस विल बी U1। इसका मतलब बड़ी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज U2 इज 0। बड़ी बॉडी को, बड़ी बॉडी आएगी, एक ट्रक आ जाएगी, सपोज एक ट्रक आ जाएगी, वो छोटे से बाइक वाले के पास आ जाएगी, बड़ी ट्रक, ठीक है, बड़ी ट्रक, ट्रॉलर मान लीजिए, वो आया अपनी स्पीड से, इसको क्या किया, तो देखो क्या हुआ कि जब इसको टक्कर मारा तो ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ा वेलोसिटी से, याद रहेगा। सो V1 इज इक्वल टू U1। लेकिन जो बाइक वाला है देखिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, V2 किसके बराबर होगी, देखेंगे यहां पर V2 किसके बराबर रहेगी, तो M1 ग्रेटर देन M2, M1 ग्रेटर देन M2। सो M1 जो है M2 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो U2 0, तो ये टर्म नहीं रहेगी बिकॉज U2 इज 0। मैंने माना बॉडी नंबर 2 इज रेस्ट में, तो इस पे आ जाएगी। अब M1 इज ग्रेटर, दिस M1 इज ग्रेटर देन M2, सो ये M1 ये M2 नेग्लेक्ट हो जाएगा, सो ट्वाइस M1 डिवाइड बाय M1, M1 कैंसिल, ट्वाइस U1। सो V2 जो है वो बनेगा ट्वाइस U1, ऐसे। यानी जब एक ट्रॉलर एक बाइक वाले को टक्कर मारेगा, ट्रॉलर हेवी होता है, ट्रॉलर की स्पीड चेंज नहीं हो जाएगी, जो बाइक वाला है उसको क्या हो जाएगा, उसको ट्वाइस स्पीड मिलेगी जो ट्रॉलर की है, दुगनी स्पीड से वो धक्का मारेगा उसको, मतलब ये समझ लेना आप। तो देखो यहां पर तो हमने क्या किया, यहां पर V1 इक्वल माइनस V2 इक्वल 0। देखो V2 0 यहां भी अप्रूव कर सकते हो इस वाले केस में, M2 ग्रेटर देन M1 में, M2 ग्रेटर देन M1 में M2 क्या हो जाएगा, M1 का नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहां बचेगा M2 यहां पर U2 0 है तो मामला खत्म। अब इस पे आ जाएगी M2 ग्रेटर देन M1, M2 ग्रेटर देन M1, तो M1 क्या है, नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहां बचेगा M2, ठीक है ना, M2 ग्रेटर देन M1, तो बचेगा M2। बट यहां रहेगा M1 बाय M2, M1 बाय M2, M1 बाय M2 क्या है, M2 बहुत ज्यादा है M1 के मुकाबले में इसमें, तो ये अप्रोचेबल टू द 0, सो इसलिए V2 इक्वल टू 0, ठीक है, याद रहा आपको, इस पे भी आप प्रूव कर सकते हो। सो फिर से इस केस को मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, फिर से बता रहा हूं एक बार, देखिए अगर स्पेशल केस, ये स्पेशल केस सेकंड फिर से बताता हूं, अगर आपकी बड़ी सी बॉडी होगी और वो, यार एक मिनट मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अगर आपकी छोटी सी बॉडी होगी, छोटी सी बॉडी बड़ी सी बॉडी को, यानी इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, इसकी स्पीड V1 है, इसकी स्पीड U2 है, और ये जो U2 है ये हमें रेस्ट में मानना है, U2 इक्वल 0, इसको रेस्ट में मानना है। तो केस इज यहां पर M2 ग्रेटर देन M1, एक केस इज हियर M2 ग्रेटर देन M1 और U2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा इस मामले में ये हो जाएगा, सो U1 या U2 रेस्ट में है, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये जो M1 है और ये जो M2 है, ये M1 का V1 जो होगा ना वो वही रहेगा जो U1 है, वही स्पीड रखेगा, इसे वो उसे माइनस U1, उसे वो वापस आएगा, हाँ वही स्पीड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस U1, ठीक है, माइनस U1, ओके गॉट इट, माइनस U1। मतलब अगर एक छोटा सा बाइक वाला एक बड़े खंबे के साथ टक्कर मारेगा, तो इसका मतलब जब वो खंबे से टक्कर मारेगा वो वापस आ जाएगा उसी स्पीड से जिस स्पीड से था वो, तो इसलिए माइनस U1 आया। और V2 है, खंबा जो है वो अपने पास ही, वो हिलेगा नहीं, तो V2 इक्वल टू 0, ऐसे याद रखोगे आप। और एक इसमें थर्ड केस ये है कि अगर नहीं जी M1 ही ग्रेटर देन होगा M2 और U2 इक्वल टू 0, ठीक है, सो मतलब छोटी बॉडी है, बड़ी सी बॉडी M1 है, ये बड़ा है, ये छोटी बॉडी है, इसकी स्पीड U1 कहलाएगी, इसकी स्पीड U2 हम कहलाते हैं। सो क्या हो जाएगा फिर, जब बड़ी बॉडी और छोटी बॉडी को क्या होगा, यहां पर वेलोसिटी V1, यहां पर वेलोसिटी V2। V1 क्या होगा, जब बड़ी गाड़ी ट्रॉलर जो है वहां पर रेस्ट में है, सपोज बाइक, उसको टक्कर मारेगी, ट्रॉलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इसकी स्पीड है वही स्पीड रहेगी, और लेकिन जो वो बाइक वाला है उस बेचारे को दुगनी स्पीड मिलेगी, यानी उसको जब वो कोलाइड हो जाएगा, जब उसको टक्कर मारेगा, उसको ट्वाइस U1 स्पीड मिल जाएगी, दुगनी स्पीड से वो आगे चला जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा इस तरीके से। हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं आते लेकिन मैंने आपको बताया, ठीक है, तो ये रब करते हैं।
देखिए देखिए बेटा, अब देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर हम। क्या बोलेंगे आपको, हम आपको बताएं स्पेशल केस पे, स्पेशल पे ऐसे करेंगे। सपोज दो बॉडीज हैं, एक का मास ma है और दूसरी बॉडी का मास mb है। इसकी वेलोसिटी va है, इसकी वेलोसिटी va है, इसकी वेलोसिटी vb है, ठीक है। और वो कोलाइड क्या किया, इलास्टिकली कोलाइड किया, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक 1D कोलिजन हो गया, ठीक है, इलास्टिक 1D कोलिजन, या कोई बोलेगा हेड ऑन कोलिजन। डू यू नो हेड ऑन कोलिजन? ओके, मैं आपको हेड ऑन कोलिजन बोलता हूं। अगर दो बॉडीज होंगे, अगर ऐसे उनका जो सेंटर ऑफ मास है, अगर उनको आप मिलाओगे, अगर जो स्पीड्स होंगे, सो u1 और u2, अगर ये स्पीड्स इसके इस लाइन के पैरेलल हो गए जो इनको सेंटर ऑफ मास को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो यहां पर भी ये हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, ठीक है, समझ गए? हेड ऑन कोलिजन, अगर दो सेंटर ऑफ मास को लाइन जो होगी, उस लाइन सेंटर ऑफ मास को कनेक्ट जो लाइन करेगी, अगर उस लाइन को जो वेलोसिटीज हैं वो उसके पैरेलल होंगे, तो हम उसको हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन। तो ये हेड ऑन कोलिजन भी है। तो कहीं कहीं आप वर्ड देखोगे तो यही होता है हेड ऑन कोलिजन। ओके, सो इलास्टिक 1D कोलिजन हुआ, आपको बताया गया है, ये जब जा रहे हैं इलास्टिक कोलिजन के बाद आपको बताया गया है कि बताइए MA/MB if the bodies exchange their velocities आफ्टर कोलिजन। ये है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? फाइंड, हमें दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि टू बॉडीज ऑफ मास ma एंड mb मूविंग विद वेलोसिटीज va एंड vb सच दैट दे अंडरगो इलास्टिक 1D कोलिजन। तो वो इलास्टिक 1D कोलिजन में उनमें हो गया, और साथ में ये कंडीशन दिया गया है कि आप उनका जो फ्रैक्शनल मास ma/mb है वो आपको निकालना है ma/mb इफ कंडीशन है, इफ ऑन द कोलिजन दे एक्सचेंज देयर स्पीड्स। बेटा यहां पर देखिए, आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन बहुत सारे हैं। सपोज ऑप्शन ए है va माइनस vb डिवाइड बाई va प्लस vb, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी vb माइनस va डिवाइड बाई va प्लस vb। ऑप्शन सी, ठीक है ना, va प्लस vb डिवाइड बाई va माइनस vb। ऑप्शन डी है 1, ठीक है। आपको बोला गया है कि बताइए अगर दो बॉडीज जिनका मास ma एंड mb है, दे आर अंडर विद मूविंग विद वेलोसिटीज v एंड vb, दे अंडरगो कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ देयर masses ma एंड mb। आपको ये मास निकालना है, ये किसके बराबर है। यहां कोई मैथमेटिक्स नहीं करना है, यहां पर एक की पॉइंट है, सिंस दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। पता है बॉडीज एक्सचेंज कब करते हैं वेलोसिटी, जब इनके मासेस आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब ma इज इक्वल टू mb, सो ma इज इक्वल टू mb, वो कैंसिल हो जाएगा, वो 1 बचेगा, तो आंसर इज 1। फिर से मैं बोलता हूं, when bodies exchange their velocities, then there, इसका क्या मतलब हम जानते हैं, वो तभी एक्सचेंज वेलोसिटी करते हैं जब वो आइडेंटिकल होगी, जब उनका मास बराबर होगा। इसका मतलब ma इज इक्वल टू mb। जब ma इज इक्वल टू mb है तो हम बोल सकते हैं ma/mb, ये दोनों बराबर है m की। सपोज ये दोनों बराबर है तो mb के बदले भी ma ही लिख लीजिए, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1। सो द फ्रैक्शन इज 1। ओके, ये भी एक एंट्रेंस में आया है, ओके, तो इसलिए ये आपके लिए क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझाया की पॉइंट क्या था, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना था। यहां पर एक पॉइंट वहां था कि दो बॉडीज कोलाइड किए, मास ma एंड b है, उनकी स्पीड जो v एंड b है, लेकिन जब कोलिजन किया, 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन किया, उन्होंने वेलोसिटी को एक्सचेंज किया। हम जानते हैं 1D इलास्टिक कोलिजन में अगर वेलोसिटी एक्सचेंज होते हैं तो बॉडी आइडेंटिकल होते हैं, बिकॉज वी नो दैट आइडेंटिकल बॉडीज ऑन गोइंग इलास्टिकल 1 डायमेंशनल कोलिजन दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। तो यहां पर बताया गया वो दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज का मतलब उनका मास बराबर है, तो इसलिए आपके पास जवाब यही है, ma/mb इज इक्वल टू 1। ओके, गॉट इट। ये सवाल आपके लिए था। अब हम कोई और क्वेश्चन करते हैं जहां पर हमें आइडेंटिकल मास का कंसेप्ट आ जाएगा, तो थोड़ा सा हम उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो आपको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहले सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। से सपोज यहां पर ऐसा क्वेश्चन करते हैं, सो यहां मास है, सो m, ओके, और इसकी स्पीड जो है वो है
5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ जो मास है m और इसकी स्पीड है मान लीजिए 0.2 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड। आइडेंटिकल मास है, आपको बताया गया है ये इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक दे आर गोइंग अंडर इलास्टिक 1D कोलिजन। 1D कोलिजन जब कोलिजन होता है बताया गया है ये m है, ये भी m है। आपको बोला v1 कितना है, आपको बोला गया है v2 कितना है। ये है क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? टू आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइड elastically, okay, two identical bodies collide elastically such that the velocity of body number 1 is 5 km per second और body number 2 is 0.5 per second। बताए find the velocities of body number v1 and v2। okay, ऑप्शन बहुत सारे आपके पास हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास हैं 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, कामा 0.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं b है तो यहां पर क्या है 0.2 किलोमीटर पर सेकेंड कामा 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर सी ऑप्शन है आपके पास 7 किलोमीटर पर सेकेंड कामा 3 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर है डी ऑप्शन 3 किलोमीटर पर सेकेंड कामा 7 किलोमीटर पर सेकेंड। आपकी ऑप्शन देनी है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, यहां पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, आइडेंटिकल बॉडीज का कॉन्सेप्ट लगेगा। जब दो आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइड करेंगे दे विल सिंपली एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, हम जानते हैं। ये तो एक बहुत ही बड़ा है, मैं बोल सकता हूं एक इलास्टिक कोलिजन में ये की पॉइंट है। क्या है इलास्टिक 1D कोलिजन में की पॉइंट? 1D इलास्टिक कोलिजन में की पॉइंट है अगर आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, वो एक्सचेंज करते हैं अपनी वेलोसिटीज, वो एक्सचेंज करते हैं। तो मैंने यहां पर बताया ना ये आइडेंटिकल बॉडीज हैं, ये कोलाइड कर रहे हैं इलास्टिकली, 1D कोलिजन है इनमें बीच में। तो बताया गया v1 v2 बताया, यानी आफ्टर कोलिजन उनकी स्पीड क्या है हम जानते हैं, वो एक्सचेंज करेंगे स्पीड। तो इसका अगर 5 है तो इसका अब 5 बनेगा, वो बॉडी नंबर 2 का बनेगा फिर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो बनेगा इसका बनेगा 2 किलोमीटर पर सेकेंड, फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका ये मतलब है 2 और 5 इसका आंसर है। ओके 0.2, ओके 0.2, तो इसका मतलब है 0.2 एंड 5 इसका आंसर है। तो वो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ओके, गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो कितना सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक लॉजिक इस्तेमाल करना है। बिकॉज 1D कोलिजन में सिंपली क्या है वेलोसिटीज एक्सचेंज हो रहे हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा आपको सिंपली आंसर करना है कि वो अपनी जो वेलोसिटीज है वो एक्सचेंज करेंगे, दैट्स इट। कोई मैथमेटिक्स नहीं, कोई ज्यादा सोल्यूशन नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। हो गया ये भी। ओके चलिए और एक न्यूमेरिकल लेते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। देखते हैं कौन सा वाला न्यूमेरिकल हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये इस तरीके से हमने इसको सीखा, आइडेंटिकल मैसेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ऐसा है हम थोड़ा सा दूसरा एक करेंगे। सो फॉर एग्जांपल ये एक मैस है, ये m1 है, ओके। इसकी स्पीड जो है u1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ओके 2 मीटर पर सेकेंड मानते हैं। और m2 जो है यहाँ पर एक बड़ा सा वॉल है, ये वॉल मानेंगे हेवी वॉल, ठीक है। दिस इज हेवी वॉल, ये एक हेवी वॉल मानेंगे हम, क्या मानेंगे? हेवी वॉल, ओके हेवी वॉल, ये हम हेवी वॉल मानेंगे। इसका मैस m2 हम मान सकते हैं। और आप जानते हैं हेवी वॉल का, जब हेवी वॉल का कंसेप्ट आया तो मान लीजिए ये बहुत हेवी है और उसकी स्पीड इस तरह है, वो है 1 मीटर पर सेकेंड। आपको बोला गया है कि जब ये कोलाइड करेंगे इलास्टिकली, आफ्टर कोलिजन जो m1 है और जो ये दीवार है, ओके, इसकी वेलोसिटी है सपोज v1 और उसकी जो v2 होगी इसकी, आपको ये बताया गया है कि v1 बताइए कितना है और v2 बताइए कितना है आफ्टर कोलिजन। ये क्या है? ये हो रहा है इलास्टिक 1D कोलिजन, दे अंडरगो इलास्टिक 1D कोलिजन। और आपको बताया गया है कि आप v1 और v2 बताइए, ठीक है। u1 यहां पर है, तो यहां पर आपको जो हेवी वॉल है यहां पर, जिसको हम m2 बोल सकते हैं 2 मिनट के लिए, तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे। तो फिर बताइए क्या है v1 और v2। देखिए अगर देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वॉल ना रेस्ट में होता, तो मैं इसको m2 को बहुत लार्ज मानता, तो छोटा सा ऑब्जेक्ट जब उसके साथ मिलता उसको वापस आना था उसी वेलोसिटी पे, मैं -2 लिखता इसका जवाब, मैं -2 इसका जवाब लिख सकता। लेकिन ऐसी सिचुएशन हमारे पास नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 1 मीटर पर सेकंड नहीं रखता, अगर मैं इसको 0 पे रखता, तो ये मेरा वही स्पेशल केस बन जाता कि हेवी
बॉडी और लाइट बॉडी, जब इसके साथ इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, ये बॉडी उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगी जिस वेलोसिटी से जा रही है वापस टक्कर मारने के बाद। तो मैं तो इसका u1 जो v1 होता है मैं लिखता -2 मीटर पर सेकेंड सपोज, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है तो हमें इसको करना पड़ेगा। हमारे पास जो इक्वेशन पड़ी है, जो हमारे पास इक्वेशन है v1 इज इक्वल टू, शाबाश, वो क्या है, m1 - m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, याद आया यहां पर u1 प्लस ट्वाइस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो यहां पर क्या है u2, जरा निकालिए इसको, शाबाश बेटा, m1 - m2, ओके, m1 - m2। अब एक चीज है, ये हेवी वाल है, m2 बहुत बड़ा है किसके मुकाबले में, m1 के मुकाबले में, m2 बहुत बड़ा है, हेवी वाल है m1 के मुकाबले में, तो m1 नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहां भी m1 नेग्लेक्ट, ये और ये कैंसिल, यहां बचेगा u1, खाली u1 बचेगा, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं u1 प्लस देखिए m2 बहुत बड़ा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा m1 m2 के मुकाबले में, यहां बचेगा 2 m2 m2 कैंसिल, यहां बचेगा प्लस 2 u2, ओके, ये है, समझ में आई बात। देखो ना यहाँ केस क्या है, केस यहाँ है m2 इज ग्रेटर देन m1, समझ लो, ये स्पेशल केस का भी और एक स्पेशल केस बन गया, ऐसे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंट्रेंस में, ठीक है। जब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएगा 11th के सपोज पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा, तब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहाँ सिचुएशन है m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 जब ग्रेटर देन m1 होगा तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा m1 m2 के मुकाबले, यहाँ बचेगा -m2, यहाँ m1 कैंसिल नेग्लेक्ट हो जाएगा m2 के मुकाबले में, तो यहाँ बचेगा प्लस m2 m2 कैंसिल, तो -u1, यहाँ पर -u1, यहाँ पर -u1, देखिए -u1 बिकॉज माइनस है ना, प्लस यहाँ पर क्या होगा, m2 बहुत बड़ा है, हेवी है, m1 नेग्लेक्ट हो जाएगा m2 के मुकाबले, बीच नीचे क्या बचेगा m2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 2u2, गॉट इट। u1 पता है आपको कितना है, -2 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 इंटू u2 किसके बराबर है, u2 1 मीटर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए -1, गॉट इट। यहाँ फॉर्मूला का माइनस, फिर u1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ 2 ये जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -1 लिखा है इसलिए। सो -2 2 1 2 -2 कितना हो, -4, सो -4 मीटर पर सेकेंड, ये जवाब है इसका, ठीक है, ये जवाब है इसका, किसका, हाँ। तो आप इसी तरीके से v2 भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो पता चला, ये v2 आप घर में एक्सरसाइज कर लीजिए। तो v1 आपने निकाला कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड, -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखा कैसे कि सवाल को हम स्पेशल केस मान के चले गए, m1 m2 के मुकाबले में नेग्लेक्ट किया बिकॉज वो हेवी वाल था। तो इस तरीके से हम आंसर देख सकते हैं। v2 भी आप निकाल लीजिए उसी फॉर्मूला से, जहां पर लिखेंगे m2 - m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1, वो फॉर्मूला यूज करके आप इसका आंसर निकालो, ठीक है, समझ गए बेटा, ओके, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट नाउ। सो नाउ हम इलास्टिक 2D कोलिजन पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम उसके कुछ न्यूमेरिक्स लेते हैं, क्या है, इलास्टिक 2D कोलिजन, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, लेकिन पहले क्या पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में 1D पढ़ा था, यहाँ क्या 2D। वो क्या होता है 2D में, कि जब बॉडी मूव करेंगे वो टू डायमेंशन में। सो क्या होता है कि जो 1D कोलिजन में क्या होता है, बॉडी कोलाइड्स, देन द कोलाइडिंग बॉडीज मूव्स इन 1 डायमेंशन से, या x एक्सिस में या y एक्सिस में, लेकिन या किसी z एक्सिस में, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में मूव करेगा। लेकिन जब 2D होगा तो आफ्टर कोलिजन द बॉडी मूव इन 2 डायमेंशंस, देयर वी रिक्वायर 2 एक्सिस, x y y z x व्हाटएवर, देयर वी नीड 2 डायमेंशंस, 2 एक्सिस, ओके। तो देखिए क्या करेंगे हम 2D कोलिजन में। सो ये मान लीजिए बॉडी नंबर 1 है। हाँ, एक चीज और, जो 1D के कुछ चीजें हैं वो 2D में नहीं, जैसे एक्सचेंज बॉडी, जब बॉडीज 1D में कोलाइड करते हैं, दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, वो 2D में नहीं होता है, ठीक है। ऐसी चीजें यहाँ पर आपको दूसरे हिसाब से करनी पड़ेगी। से ये बॉडी नंबर m1 है, इसकी स्पीड है u1, और ये m2 है, इसकी स्पीड है u2 फॉर एग्जाम्पल, और ये कोलाइड किए, ये एक दूसरे से कोलाइड किए। मैं दिखाऊंगा इलास्टिक 2D कोलिजन। अब 2D कोलिजन दिखाना है, 1D नहीं दिखाना है। तो देखिए, सो बॉडी नंबर यहां पर m1, सपोज फॉर एग्जांपल m1 भागी ऐसे फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन, इसका v1 रखेंगे, ठीक है। ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, दिस वाज द ओरिजिनल डायरेक्शन। सो देखिए भाग गई वहां से, ठीक है ना। और m2 जो है शाबाश, m2 जो है उसको क्या करेंगे आप, देखो सुनो मेरी बात, यहां पर मोमेंटम किसमें है, x एक्सिस में, तो ठीक है, इसका मोमेंटम जब हम रिजॉल्व करेंगे x एक्सिस में भी आएगा, y एक्सिस में आएगा।
लेकिन जब y एक्सिस में मोमेंटम आएगा उसको यहां पर y एक्सिस में कोई मोमेंटम नहीं है, देखो सुनो मेरी बात, यहां y एक्सिस में कोई मोमेंटम नहीं है, तो उसको कोई ना कोई चीज बैलेंस करना चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शन बचती है कि मैं इसको ऐसे ही लूं, ठीक है, ऐसे। इसमें क्या है, इसमें V2 में जो कंपोनेंट यहां से आएगा वो इस वाले कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। तो क्या है कि हम बोल सकते हैं हाँ जी जो y में वो 0 हो गया, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी जो है यहाँ पर लग रही है बेस्ट डायरेक्शन वो ये लग रही है, ठीक है। तो मैंने V1 ऐसे लिया, V1 ऐसे लिया, V2 का ऐसे, क्योंकि V1 जब ऐसे लेंगे इसको जब कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे यहां से यहां, तो यहां तो ठीक है x एक्सिस में तो मोमेंटम है, यहां तो इसका भी उसी डायरेक्शन में होगा वो तो है, लेकिन y एक्सिस में मोमेंटम यहां नहीं है, तो हम यहां से कहां से लाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिया कि कोई कंपोनेंट यहां से आए तो उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए जब रिजॉल्व करेंगे इसको कंपोनेंट्स में, तो यहां से क्या आएगा, एक कंपोनेंट जो इसका आएगा वो आएगा, सपोज दिस इज θ1, सपोज दिस इज θ2, दिस इज θ1, दिस इज θ2, तो यहां पर आएगा कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट आएगा, V2 cos θ, V2 cos θ। और यहां से क्या आएगा, यहां से इसका कंपोनेंट कौन आएगा, शाबाश, क्या आएगा, V2 sin θ, V2 sin θ, θ2, ओके, θ2, फाइन। V2 cos θ2 यहां से आएगा, V2 sin θ2 यहां से आएगा। देखो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया मैंने इसको रिजॉल्व किया, दिस विल बी V2 cos θ2 यहां से, और इसको भी रिजॉल्व किया कंपोनेंट में, तो इसका कंपोनेंट क्या रहेगा, V1 cos θ1, बिकॉज इसका एंगल θ1 है, बेस में तो cos लेते हैं, ओके। परपेंडिकुलर साइड में क्या लेंगे, साइन, ठीक है, दिस विल बी V1 sin θ1, ओके, लाइक दिस। कुछ इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे, वो हमें बहुत काम आएंगे, चाहे हमें थ्योरी में करना पड़ेगा या न्यूमेरिकल में हमारे काम आ जाएंगे, वो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। आप जरा देखिए आप इक्वेशन कैसे करेंगे, यहां पर फिर फर्दर डेवलप करेंगे खुद की इक्वेशंस क्या होंगे, देखिए क्या होंगे, इधर सुनिए। सो यहां पर पहले ऐसे करेंगे हम, एक मिनट, तो देखिए चाहे कोलिजन कोई भी हो, हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जो क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, कंजर्व्ड है ना, कंजर्व। इसका मोमेंटम इनिशियली जो होता है वो मोमेंटम फाइनली होता है, लेकिन जिगर एक बात याद रखना, यहां पर मोमेंटम कंजर्व सिर्फ एक एक्सिस पे नहीं, दोनों एक्सिस पे सेपरेटली कंजर्व होना चाहिए। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको यहां पर एक्स एक्सिस पे भी मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए और वाई एक्सिस पे भी मोमेंटम, बिकॉज ये 2D कोलिजन, देखो ना दोनों एक्सिस इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्स भी और वाई भी, 2D कोलिजन है, खुद ही लिया था ऐसे। तो क्यों नाम लिखेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन बिफोर एन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल एक्स एक्सिस। तो ये एक इक्वेशन यहां से आएगी, दूसरी इक्वेशन हम ऐसे करेंगे, मोमेंटम इनिशियली वाई एक्सिस, जो मोमेंटम फाइनली वाई एक्सिस में होगा। बताइए, ये तो कंजर्वेशन है, यही तो कंजर्वेशन है। तो टेल मी डियर स्टूडेंट्स, बताइए एक्स एक्सिस में इनिशियली मोमेंटम क्या है, m1, और इसका क्या है, u1, तो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम m2 और u2 इज इक्वल टू फाइनली क्या है, बताइए एक्स एक्सिस पे देखिए, पहले इसका मैस m1 है और वेलोसिटी कितनी है, v1 cos θ, बन गया m1 v1 cos θ1, ये बन गया, देन प्लस m2 v2 cos θ2, ऐसे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बिकॉज एक्स एक्सिस पे ये भी है मोमेंटम जो है मैस 1 से, इसकी स्पीड से, स्पीड क्या है एक्स एक्सिस पे, v1 cos θ, इसका मैस है m2, उसके स्पीड के साथ मल्टीपल करो, सो v2 cos θ2, ये बन गई इक्वेशन, ये आ गई अलॉन्ग एक्स एक्सिस, काम आ सकती है। और देखिए अलॉन्ग वाई एक्सिस कोई मोमेंटम है बेटा, नहीं, कोई भी मोमेंटम नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, तो मोमेंटम इनिशियली वाई एक्सिस में 0 इज इक्वल टू, अब वाई एक्सिस में यहां देखिए कितना है मोमेंटम, m1 v1 sin θ1 बन गया ना, प्लस, ठीक है ना, प्लस m2 v2 sin θ2, लेकिन हाँ ये वेक्टर है क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे है, तो मैं इसको यहां नेगेटिव लूंगा, ठीक है, ओके, गॉट इट, माइनस, ओके। सो कोई मोमेंटम नहीं है यहां पर, देखो यहां 0 है, बिकॉज वाई एक्सिस में कोई मोमेंटम, जो भी था वो एक्स एक्सिस में था, तो वाई में क्या लूंगा 0, लेकिन यहां कितना मोमेंटम हुआ, कंजर्वेशन ये बोलते हैं, वो होगा इसका जमा, सो m1 यहां पर क्या वेलोसिटी v1 sin θ1, तो मोमेंटम इस वाले ऑब्जेक्ट का अलॉन्ग वाई एक्सिस ये है, तो मैस 2 का मोमेंटम वाई एक्सिस क्या है, माइनस, वो नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सिस में, माइनस m2 v2 sin θ2। सो ये और एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, समझ में आया बेटा, वेरी गुड, एक्सलेंट। देखिए आप नोट करो, ये नोट करो आप, ये राइट डाउन करो अपनी नोटबुक पे, ओके। अब जरा देखते हैं जिगर, अब देखते हैं हम क्या करेंगे। तो ये हो गई जो मोमेंटम से हमें डिफरेंट इक्वेशंस मिलते हैं, ठीक है। अब हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन
क्योंकि हमें पता है इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है। सो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है इलास्टिक कोलिजन में। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इनिशियली जो है वो फाइनली होगी, बिकॉज सुनो मेरी बात, काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रेजोल्यूशन नहीं, कोई एक्स एक्सिस पे नहीं, कोई वाई एक्सिस पे नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी सीधे सीधे जमा करो जैसे स्केलर क्वांटिटीज को करते हैं। सो इनिशियल में क्या होगा, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, और इसकी प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर, ये देखिए होगी इसकी, इज इक्वल होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहां पर हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर, कोई रेजोल्यूशन नहीं बिकॉज एक स्केलर क्वांटिटी है, प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। सिंपली इसकी जो वेलोसिटी है वही स्क्वायर करो, कोई कंपोनेंट नहीं लेना, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपली इक्वेशन बन जाएगी, बहुत सीधी सादी सी इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन आपको आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या कर पाएंगे, चलिए इसको रब करते हैं। ये देखिए मैं अब क्वेश्चन बना रहा हूं, इसको इलास्टिक 2D कोलिजन में क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक बॉडी यहां पर है जिसका मास m है सपोज, ठीक है ना, जिसका मास m है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। और यहां पर एक और बॉडी है जिसका मास m है, लेकिन ये रेस्ट में है, उसके बाद क्या हुआ, जब कोलाइड हुआ तो ये जो बॉडी है, एक बॉडी चली गई एट राइट एंगल्स टू द ऑरिजिनल डायरेक्शन ये, उसके बाद उसकी स्पीड बन गई v/2, ये मान लीजिए, ठीक है। ये मास m है, ये भी मास m है, इसके साथ कोलाइड किया तो एक बॉडी जो है वो चली गई इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये तो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन जो थी वो ये थी, ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन, ओके। उससे वो कहां चली गई, उससे वो v/2 पे चली गई, ओके। आपको बोला गया है जो बॉडी नंबर 2 है, बताइए उसकी वेलोसिटी क्या है, हमें v2 को बोलना है क्या है। ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये 2D कोलिजन है, ये 2D कोलिजन में आ जाएगी, ठीक है। एक बॉडी है m, उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, समझ गए। तो उसके बाद आपको क्या बोला गया, कि एक बॉडी जो चली गई v/2 पे, ठीक है ना। तो आप बताइए इसका v2 ये कितना होगा, v2 कितना होगा। या इससे पहले हम एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आप 2D में आ सकता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। या आपको बोला गया कि ये जो डायरेक्शन है, ये बताइए ये डायरेक्शन कितनी है, ये बताया गया है, इसलिए ये डायरेक्शन आपको थीटा बताया गया, ओके। ये कितनी है, ठीक है, ये कितनी है, ऐसे बताया गया, हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए इसको रिजॉल्व करो, यहां से रिजॉल्व करके इसका जो आएगा यहां से वो आएगा v2 sin v2 cos थीटा, और यहां से जो ये तो रिजॉल्व किया हमने, और यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा v2 sin थीटा। हमें थीटा निकालना है, चलिए कीजिए, कंजर्वेशन मोमेंटम इक्वेशन यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दो बॉडीज मैस एक दोनों का मैस सेम है, आइडेंटिकल बॉडीज हैं, एक क्या है, एक रेस्ट पे है, दूसरी वाली बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, ये रेस्ट है, ये टी है, रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी v है, और जब टक्कर का मारने के बाद कोलिजन जो है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v/2 में चलेगी। तो वहां से पता चला हमें ये 2D कोलिजन है, ठीक है। तो बताइए दूसरी बॉडी की डायरेक्शन क्या है, हमें ये बताएगा, थीटा क्या है, ये डायरेक्शन बताना है हमें, 2D कोलिजन है। देखिए क्या कर सकते हैं हम यहां लिखेंगे ऐसे, मोमेंटम, ठीक है ना, मोमेंटम इनिशियल अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल अलोंग एक्स एक्सिस। ये इक्वेशन, यहां से इक्वेशन निकालेंगे, तो ये बन गया mv इज इक्वल टू, ये तो 0 है ना, ये रेस्ट में, इसका नहीं आएगा, इज इक्वल टू जो फाइनल एक्स में है क्या है, वो आ जाएगा, हाँ कितना है, m इंटू, इसका तो एक्स एक्सिस में कुछ नहीं, सिर्फ उसका है m, ये जो है v2, शाबाश, v2 cos थीटा, v2 cos थीटा। फिर से देखता हूं, देखिए यहां पर जो एक्स एक्सिस पे है वो mv है, यहां पर एक्स एक्सिस पे 0, इसका नहीं है। अच्छा मैं पूरा दिखाता हूं, ये जो है ये m इंटू वी मोमेंटम बॉडी नंबर 1 का, 2 का जो है वो 0 होगा, इज इक्वल टू, अब यहां देखिए, अब एक्स एक्सिस पे किसका है, एक बॉडी का है, वो है m v2, इसका वेलोसिटी v2 cos थीटा, ओके, ये है, बस एक्स एक्सिस पे इतना ही है ना। तो ये हमारे पास ये यहां पर बनेगा mv इज इक्वल टू m v2 cos थीटा, m एंड m कैंसिल, ठीक है ना,
एम एंड एम कैंसिल, सो v इज इक्वल टू v2 cos थीटा। v तो हमें पहले डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, ओके, थीटा निकालना है हमें। थीटा क्या है मैं आपको बता रहा हूं। चलिए दूसरी इक्वेशन, p मोमेंटम अलोंग y एक्सिस इनिशियली होगा, मोमेंटम अलोंग y एक्सिस फाइनली जो वो फाइनल जो होगा y एक्सिस पे। मैंने बोला ना अलग अलग एक्सिस पे 2D में अलग अलग एक्सिस पे आपको मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। चलिए तो यहां पर देखिए y एक्सिस में कुछ नहीं है तो जीरो मोमेंटम इनिशियली, क्योंकि y में नहीं जा रहा है, सिर्फ x में जा रहा है। लेकिन यहां पर y में है, देखिए क्या है, पहले ये जो है v/2 m मैस जो है और इसकी वेलोसिटी v/2 प्लस m मैस जो है, दूसरा m जो है और उसकी वेलोसिटी है v2 sin थीटा। लेकिन ये डाउनवर्ड्स है तो माइनस प्लस के बजाय माइनस लिखेंगे, प्लस के बजाय माइनस लिखेंगे। अब देखिए m एंड m गोज, बिकॉज ये कॉमन आ जाएगा तो ये जीरो बन जाएगा, तो इसको यहां लो, इसको यहां लो, तो ये बन जाएगा v/2 इज इक्वल टू v2 sin थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अभी डायरेक्शन आ जाएगी, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, तो क्या मिलेगा आपको बेटा, 2 बाय 1 तो क्या मिलेगा 2 बाय 1। सो यहां पर आएगा v/2 डिवाइड बाय v इज इक्वल टू यहां पर v2 sin थीटा, v2 sin थीटा डिवाइड बाय यहां पर v2 cos थीटा, ठीक है। देन v2 कैंसिल, ओके, सो v ऊपर आ जाएगा तो v एंड v कैंसिल, यहां पर बचेगा 1/2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बिकॉज sin थीटा बाय टेंजेंट थीटा। यहां तक हम आगे, देखिए मैं रब करूं, ओके, मैं रब करूं, सो ठीक है मैं रब कर रहा हूं। देखिए बेटा, अब देखिए अब देखिए यहां पर क्या है, टेंजेंट थीटा जो है वो आया 1/2, सो थीटा जो है वो आएगा tan इनवर्स 1/2। सो द आंसर इज क्या है आंसर, मैं यहां देखता हूं, थीटा जो है कितना है, tan इनवर्स 1/2, ये आंसर। एक एंट्रेंस में आया था, एक एंट्रेंस में ऐसा आया था एक क्वेश्चन, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये डायरेक्शन आ गई, ठीक है। चलिए हो गया ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे हम, ओ v2, ओके, v2 में आप कर लेना, वो खुद निकाल लेना आप v2, ठीक है। v2 निकालोगे आप, जो इक्वेशन आपकी मोमेंटम की आई वहां पर आप sin थीटा का वैल्यू दोगे, sin थीटा आप टेंजेंट थीटा देखोगे, tan थीटा आपका 1/2 है, तो आप sin थीटा वहां से निकालोगे, बिकॉज वहां पर आपको परपेंडिकुलर बेस गिवन है, तो आप sin थीटा निकाल सकते हो, तो आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल करेंगे। एक बॉडी है जिसका मास m है और यहां पर दूसरी बॉडी है जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, और ये रेस्ट में ये चले गए इलास्टिक 2D कोलिजन हुआ, क्या हुआ, और इस इलास्टिक 2D कोलिजन में क्या हुआ, एक बॉडी जो है, ये तो ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन थी, एक बॉडी चली गई एट 60 डिग्री, कितनी 60 डिग्री, ठीक है ना, एट 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं आपको यहां पर बनाता हूं, चलिए मानते हैं, मैं एक मानता हूं, सपोज ए ब्लेड बॉल है ना, वो ब्लेड बोर्ड जो है, वो जो खेलते हैं ना, ब्लेड है, ओके। तो जब एक बॉल को हम दिखा देते हैं तो वो दूसरे बॉल के साथ, आइडेंटिकल बॉल के साथ स्ट्राइक करें, चलिए उसी पे बनाते हैं। तो ये मानता हूं मैं, एक बॉल का 2 मीटर पर सेकेंड, ये ब्लेड बॉल है, इसने एक आइडेंटिकल ब्लेड बॉल, बिकॉज एम मैस सेम है, तो आइडेंटिकल ब्लेड बॉडी को उसने कोलाइड किया, वो दूसरी बॉडी रेस्ट में थी। उसके बाद वो बॉल जब उसको उसने एक ब्लो दे दिया, एक ग्लांसिंग ब्लो दिया, इलास्टिक 2D कोलिजन हुआ, ग्लांसिंग ब्लो, ओके, ग्लांसिंग ब्लो साइड में इसने मारा इसको ब्लो, तो ब्लो मारने के बाद क्या हुआ, एक ब्लो हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, ओके, ग्लांसिंग ब्लो के बाद क्या हुआ कि वो बॉल चली गई एट 60 डिग्री फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन विद स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, हम मानते हैं, ठीक है, विद स्पीड 1 मीटर पर सेकंड चली गई। आपको बताया गया जो दूसरी बॉल है उसकी स्पीड कितनी है, एक उसकी स्पीड बोलनी है दूसरी बॉल की, और एक तो उसका एंगल भी बोलना है, ये भी बोलना है, ये भी बोलना है, दोनों बोलो। देखो मुझे ऑप्शन नहीं बचती थी इसकी डायरेक्शन ये लेनी, क्यों,
क्योंकि अगर इसका मोमेंटम आएगा वो इस एक्सिस पे आएगा, वो वाई पे भी आएगा, तो वाई को कोई ना कोई बैलेंस करना चाहिए, बिकॉज एक्स एक्सिस में मोमेंटम है लेकिन वाई एक्सिस में इनिशियली मोमेंटम नहीं है, तो फाइनली मोमेंटम जनरेट तो नहीं होगा ना, वो कंजर्व है। तो अगर यहां पर वाई एक्सिस में ऊपर के मोमेंटम नीचे भी कोई बैलेंस करना चाहिए, इसलिए ये डायरेक्शन मैंने प्रॉपर समझी। तो ये है एक क्वेश्चन बन गया, क्या है, एक ब्लेड बॉल मूविंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड gives a glancing blow to the another identical ball of mass m such that a ball after collision goes with 1 meter speed at a direction of 60 degree from the original line of motion. Okay, find the direction and the speed of the other ball. Direction and the speed of the other ball. Find the direction and the speed of the other ball. Okay, एक डायरेक्शन ढूंढनी है, थीटा ढूंढना है और स्पीड उसकी ढूंढनी है, बस एक न्यूमेरिकल बन गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, पहले मोमेंटम कोलिजन निकालेंगे। मोमेंटम इनिशियली कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंटम फाइनली जो है कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, कंजर्व है अलोंग एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से देखिए, मास इनटू वेलोसिटी, सो m इंटू टू, ये तो रेस्ट में है तो 0 का होगा, इज इक्वल टू यहां फाइनली एक्स एक्सिस में क्या है, चलिए तो देखिए इसको करना पड़ेगा। यहां पर आप रिजॉल्व कीजिए, इसका कंपोनेंट जो होगा, इसका कंपोनेंट, इसको हम v1 नाम देंगे, वो 1 मीटर पर सेकंड है, ये तो हमें v2 है, v2 निकालना है, ठीक है। तो v1 ये आएगा v1 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, आपको समझ में आया, v1 cos, बट v1 जो है वो 1 है ना, तो ये याद रखना, तो वो cos फिलहाल, चलिए बाद में करते हैं। सो v यहां पर क्या आएगा, v2 फिर आएगा cos थीटा, ये तो थीटा निकालना है। इसी तरीके से यहां से भी एक कंपोनेंट आएगा इसका, और वो कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा v1 तो 1 मीटर पर सेकंड, वो तो गिवन है, वो भी करेंगे हम sin 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, देखिए अच्छा सा सवाल बन गया, यहां से क्या आएगा v2 sin थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना है, थीटा है। तो चलिए यहां स्टार्ट करते हैं। सो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, सो मास इसका m है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसका 0 बनेगा, मास इंटू 0, वो 0 मोमेंटम नहीं आएगा, प्लस वो 0 मैंने नहीं लिखा। फिर एक्स एक्सिस में इसका मोमेंटम 2 है, एक तो ये इसका m मास है, इसका भी m है, एक तो मास इंटू वेलोसिटी, सो m, देखो m और क्या है, m इंटू v1 cos 60 डिग्री, देखो v1 क्या है, शाबाश, v1 cos 60 डिग्री, ओके। पता है v1 1 के बराबर है ना, सो पता चला यहाँ पर 2m, देखिए यहाँ पर मास तो m ही है, v1 तो 1 है, cos 60 1/2 है, ठीक है, m, तो यहाँ पर क्या आएगा हमें, ओके, सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ओके, प्लस यहाँ पर प्लस, और क्या है एक्स एक्सिस में यहाँ पर v2, ओके v2 और m आएगा, m उसकी स्पीड क्या है दूसरी पार्ट की, v2 cos थीटा, ओके। देखिए तो ये आ गया m, v1 1 मीटर पर सेकंड है, cos 60 1/2 है, प्लस इसका मास क्या है, m है, और v2 कितना है, v2 तो निकालना है ना, v2 और cos थीटा, डायरेक्शन भी निकालनी है, ठीक है। देखिए m एंड m कैंसिल सब में, तो यहां बचेगा 2, यहां आएगा 1/2 इधर रहा है, सो -1/2 इज इक्वल टू यहां क्या बचा, v2 cos थीटा। सो यहां पर 4 माइनस, यहां पर 3/2, ओके, 3/2 इज इक्वल टू v2 cos थीटा, ये देखिए 3/2 cos थीटा। अच्छा चलिए अब दूसरी मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे। क्या मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे, अलोंग वाई एक्सिस, सो इनिशियली मोमेंटम जो है वाई एक्सिस, वो है इनिशियली फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ओके, ये तो है अलोंग वाई एक्सिस कंजर्वेशन मोमेंटम। तो वाई एक्सिस में इनिशियली तो कुछ नहीं है, तो 0 बन गया, इज इक्वल टू, तो फाइनली क्या है, दो मोमेंटम है, तो एक तो m है, मास m, और उसकी वेलोसिटी क्या है, v1 sin 60 डिग्री, ओके। देन माइनस बिकॉज ये नीचे की तरफ है, मास इंटू वेलोसिटी m v2 फिर sin थीटा, ये तो थीटा निकालना है ना, देखो क्या इक्वेशन आ गई। तो 0 इज इक्वल टू, शाबाश, 0 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर m वेलोसिटी 1 है, और sin 60 √3/2, sin 60 क्या है, √3/2, ओके, √3/2 माइनस m v2 sin थीटा, ओके। देखिए तो यहाँ 0 है, m तो हम कॉमन निकाल के, तो ये 0 कट जाएगा, ठीक है, कॉमन निकाल के यहाँ से कट जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो √3/2 को इधर या उसको इधर, तो माइनस है ना, तो पता चला √3/2 को यहाँ लाओ, √3/2 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, v2 sin थीटा, ये दो इक्वेशन आ गई, इसका नाम 1, इसका नाम 2, देखिए इसका नाम 1, इसका नाम 2। अच्छा बेटा देखो, अब मैं इसको रब करूं, देखो इक्वेशन नंबर 1 3/2 v2 cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2
√3/2 v2 sin थीटा। हम अब इसको मिटा रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट कीजिए, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करो फर्स्ट इक्वेशन से। सो व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगा √3/2 होल डिवाइड बाय 3/2, ठीक है ना, इज इक्वल टू v2 sin थीटा डिवाइड बाय v2 cos थीटा। v2 कैंसिल, सो 2 and 2 कैंसिल, इट इज √3/3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है ना। सो हम ऐसे कर सकते हैं, ये √3 का स्क्वायर है, किससे कैंसिल हो गया, ये बचेगा 1/√3 बिकॉज √3 का स्क्वायर, एक रूट इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो ये होगा टेंजेंट 30 हमें होता है 1/√3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ओके, टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट कैंसिल, टेंजेंट कैंसिल, तो बच जाए 30 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। सो पता चला थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये देखिए व्हाट इज द डायरेक्शन, पता चला ये कितना है, शाबाश। थीटा कितना है, ये कितना है, ये 30 डिग्री का है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, पता चला ये भी। अब v2 कैसे निकालोगे, मसला आया। इसमें डाल लीजिए sin 30, इसमें सब्स्टिट्यूट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड। ओके, तो आपको v2 निकल के आएगा। सब्स्टिट्यूट शाबाश, आप ऐसा कीजिए v2 निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट, शाबाश, सब्स्टिट्यूट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इन इक्वेशन 2। क्या मिलेगा हमें मिलेगा √3/2 इज इक्वल टू v2 sin 30 डिग्री। ओके, इट इज √3/2 इज इक्वल टू v2 sin 30 किसके बराबर है, 1/2 की। 2 and 2 कैंसिल, सो पता चला v2 इज इक्वल टू √3 किसके बराबर, √3 मीटर पर सेकेंड। सो ये पता चला किसके बराबर है, √3 मीटर पर सेकेंड। एक ऐसा क्वेश्चन है, 2D पे आया था क्वेश्चन। तो क्या आया था, पहले हमने एक बॉडी लिया था, ब्लेड बॉल लिए थे, ब्लेड बॉल ने दूसरे ब्लेड बॉल को हिट किया था, स्ट्राइक किया था, एक बाउंसिंग ब्लो दिया था, इलास्टिक कोलिजन, ये 2D में था। तो क्या हुआ, एक बॉल चली गई 60 डिग्री पे 1 मीटर पर सेकेंड पे, तो दूसरी बॉल किसी और डायरेक्शन पे चली गई। आपको बताया गया था उसका जो है वो डायरेक्शन बताओ कितना है, डायरेक्शन है 30 डिग्री। ओके, एंड सेकेंड आपको बताया गया है तो उस बॉल की स्पीड कितनी है वो हमने बताई, कितनी है स्पीड, और स्पीड है √3 मीटर पर सेकेंड, √3 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको समझ में आया होगा। देखो कैसे करना है, वही इक्वेशन बनानी है जो आपको जैसे भी आपको क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके इक्वेशन बना के आपका आंसर मिलेगा। ओके, ये था 2D कोलिजन पे,